So good morning, sir. Very good morning, sir. Am I audible? Of course, you are completely audible, sir. I think Joe is new for me. I'm not so much uh, used to work on Zoom. I think here it's share a screen. Okay, Of course, you may do it, sir. just a minute. Let me check screen Please, sharing. please, sir. Please, sir. Is my screen is visible? Of course, yes, sir. Okay. Here I will share to the. Is it there is an option for chat? Okay, Q&A. If suppose somebody is okay. Shall I broadcast this via YouTube also, sir? If you feel comfortable. Not getting. क्या बोल रहे हैं? And what I'm trying to say is this broadcast we can do on YouTube also. Yeah, we can, no issue. Oh, some problem. No. Sir, Yes, sir. I think you're logged in using our VP's account, I believe. Okay. We have sent a separate mail to user wherein you're having your own link. No issue. Just a minute. I am relogging. Or else, shall I just, in what way I could do? If I just share it through chat, that will give you a problem. Just a minute. Can you share me on WhatsApp? Sure, sir. Just tell me, sir. What's your number, sir? 932009. 1 second, sir. 1 second. 93 2009 2009 6333. 6333. Yes, sir. Yes, sir.
Have you shared the link, sir? Sir, 1 second. There is some problem in the scanning the QR code in WhatsApp. Okay, I have got a mail, but I think I have joined it from that link only. That is on No, 8th probably of you may October. join using the mail which was forwarded by our DP sir. Is it? Just a minute. Let me check whether this is a different one. Fine, sir. Then no. Okay. So there is no problem, sir. We can continue, sir. Okay, Sir, we can continue as it is. No problem. we can continue. No issue. Continue, no issues, sir. Probably we may just start exactly by 11:10, sir. Now time is 11:05 it seems. We'll wait No for issue. 5 minutes, then we'll just start by 11:10, sir. Sure. I think I will require that link because many features are still. Is there any problem, sir? No, I don't think there is a problem. I'll do one thing, sir. I'll just rename you as KDO advisory. Is it fine, sir? No issue. No issue. Yeah, I have been got a mail reminder from Johu. Shall I join from that link or it is okay? Just a minute.
Shall we start, sir? Shall we start, sir? Yeah, I'm ready, Novish. Yeah. Good morning, all. Welcome to Goodwill Wealth Management Private Limited. Today we are just going to conduct a webinar on learn in crude oil options. I hope the session would be a wonderful session to all of you, and I really thank KDS sir for his acceptance of our request to conduct the webinar for Goodwill Wealth Management Private Limited. Really, I hope you guys would be really enjoying the session. Thank you for it, and I request sir to start the webinar now. Sir, please. Thank you so much, sir. Good morning, everyone, and thank you so much for giving opportunity for me to take this session on commodity options. And I think this session I have been told to conduct in Hindi. I will try my best to get it Hindi and English both, so that और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मैसेज आप तक पहुंचे, और इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि कैसे क्या अपॉर्चुनिटीज है जो हम लोग कमोडिटी मार्केट में ग्रैब कर सकते हैं. तो वंस अगेन वेलकम एवरीवन टू द न्यू वेबिनार लर्न एंड अर्न कमोडिटी ऑप्शन, नया मौका, न्यू अपॉर्चुनिटी. और इसलिए भी रखा गया खास करके आज हम क्रूड के ऊपर बात कर रहे हैं. और जैसे कि आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों में क्रूड के प्राइसेस में वी हैव सीन अ ट्रेमेंडस वॉलेटिलिटी. पहले हम देख रहे थे कि $80 के ऊपर क्रूड जाएगा तो इकोनॉमी डिरेल हो जाएगी. पोस्ट पैंडेमिक के बाद डिमांड इंप्रूव हो रही है. ओपेक आएगा, प्रोडक्शन बढ़ा देगा. बट ओपेक आने के बाद हमने देखा कि प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी, बट एक टाइम स्पेन के अंदर. उसकी वजह से हमने देखा क्रूड के भाव में और तेजी बनती हुई दिखाई दी. और कल हमने एक अच्छा रिकॉर्ड वॉल्यूम भी बनते हुए देखा, और 6000 का लेवल हमने M6 क्रूड पे देखा. तो लेट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज ज्यादा करके काफी जन मैंने नाम देखे हैं जो मतलब मेरे रेगुलर हम बोल सकते हैं कि वेबिनार विजिटर रहते हैं. तो मैंने ज्यादा वेस्ट नहीं करता हूं टाइम, और जस्ट आई थिंक माय वॉइस एंड माय स्क्रीन इज क्लियर. जस्ट ओके. तो देयर आर काफी जाने पहचाने नाम है, और करीबन हम लोग 100 के करीब पहुंच रहे हैं. तो ज्यादा करके मेरे जो सेशंस होते कुछ लंबे होते, तो सॉरी फॉर दैट इन एडवांस. इनकेस अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप आई थिंक चैट विंडो या Q&A ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप Q&A सेशन पे आप बता सकते हैं. ओके, so friend, let's start with today's webinar. My name is Ajay Kedia. My company name is Kedia Advisory. We are SEBI registered research house, and since last 18 years I am active in this market. मेरे जो भी व्यूज है वो प्रिंट मीडिया, लाइव मीडिया में आते रहते हैं. Till now in pandemic, before pandemic I used to take seminars, but during pandemic जो भी माइनस चीज होती है उसमें हम प्लस बनाकर काम कर सकते हैं. तो पैंडेमिक ने हमें सिखाया कि सेमिनार नहीं तो वेबिनार सही. एंड फ्रेंकली आई हैव कंप्लीटेड मोर देन 650 वेबिनार इन लास्ट 1.5 year ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक पीरियड. तो आज के इस सेशन में मैं कुछ नया लाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये सेशन जो एक डिस्क्लेमर भी होता है, दिस प्रेजेंटेशन इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस. जो भी मैं कमोडिटी या कोई भी स्टॉक्स के नाम भी अगर लेता हूं तो ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है जहां पे मैं बाय या सेल बोल रहा हूं. We at KDI Advisory don't have any position in any commodity given below. So let's start with commodity. और frankly जब हम commodity की बात करते हैं तो ज्यादा करके लोगों को एक ही चीज समझ में आती है, वो आती है volatility. कमोडिटी और वॉलेटिलिटी दोनों राइमिंग्स जैसे भी लगते हैं कि कमोडिटी जब भी नाम आता है गोल्ड, तो हमें कब ध्यान आता है जब गोल्ड में बड़ी तेजी आ जाती है. या क्रूड में तो अगर आप देखिए ये सामने आपके एक चार्ट है जो करीबन 150 साल पुराना चार्ट है ये. और 150 साल में अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो कमोडिटी में वॉलेटिलिटी आप पिछले 10 साल से 5 साल से देख रहे हैं ऐसा पहले नहीं हुआ है. 1962 के बीच में जब यूएस में सिविल वॉर हुआ था तब क्रूड के भाव $120 छुआ था.
क्या चैट विंडो पे आप डाल के बता सकते हैं आपने हाईएस्ट कितना सुना है इन लास्ट 20 इयर्स, क्रूड के भाव लास्ट 20 इयर्स में कितना गया है? चैट विंडो ओपन है, प्लीज पार्टिसिपेशन रखिए सो दैट एक काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आज, और नई चीजें मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा इस सेशन में बताने के लिए। ओके, $120 नहीं आयु, $120 नहीं है। 21 फरवरी 2008 $150 हमने, यस वसीम, थैंक यू सो मच। तो $150 का लेवल भी हमने छूते हुए देखा है। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, उसके हिसाब से हमको दिखाई देता है कि $120, बट फ्रैंकली आई वाज विथ माय क्लाइंट और लिटरली 148 150 के भाव को सामने ट्रेड करते हुए हमने, आई वाज नॉट इन इंडिया, मैं थोड़ा बाहर था वो टाइम पे, मैं क्लाइंट के साथ बैठकर $150 पे हम ट्रेड कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये जो $150 आपने देखा या लो में कितना देखा, हम जीरो के नीचे भी क्रोड में जाते हुए देखा, दैट वाज जस्ट एक सप्लाई कंसर्न बना था। तो लास्ट ईयर वी हैव सीन, तो ऑलमोस्ट अगर मैं मेरे लाइफ टेन्योर में देखूं तो आई हैव सीन क्रूड मूविंग फ्रॉम -35 टू +150, मतलब ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो $185 $190 जो पूरे मैंने मेरे टेन्योर में देखा है। तो ऐसा ही कुछ मूवमेंट 1965 में भी हुआ था जब यूएस सिविल वॉर हुआ था। यहाँ पे हमने कमोडिटी के प्राइसेस के अंदर बड़ा एक जंप आते हुए देखा और क्रूड के भाव $120 टेस्ट कर गए थे। इसके बाद हमने टाइम टू टाइम देखा कि प्राइस के अंदर यूएस ड्रिलिंग एक्टिविटी बढ़ी तो प्राइसेस में गिरावट आई क्योंकि सप्लाई बढ़ रही है। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो वापस प्राइसेस में जंप आया। रिसेशन या स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन फ्रॉम यूएस एंड रशिया बढ़े थे तब प्राइसेस में गिरावट आई थी जो नीचे में $18 के करीब आ गया था। बीच में हमने देखा ऑटोमोबाइल के कंजम्पशन, ऑयल कंजम्पशन काफी बढ़ गया। तो 1920 में पोस्ट पैंडेमिक हमने काफी एक बड़ा जंप आते हुए देखा। पोस्ट वॉर ऑटोमोटिव बूम बना था 1947 में, जिसकी वजह से भी क्रूड के अंदर हमने एक अच्छा खासा जंप देखा था। या स्विस क्राइसिस हुआ था 1956 से 1957 के बीच में, क्योंकि स्विस क्राइसिस के अंदर हमने देखा 10% ऑफ वर्ल्ड ऑयल सप्लाई होता है और वो कंसर्न्स की वजह से बढ़ा। ईरान का वॉर हुआ था या ईरान ने प्रोडक्शन कट किया था। दिस टाइप ऑफ थिंग्स, जब भी ऐसा कुछ होता है, कहने का मतलब है कभी भी कुछ भी जियोपॉलिटिकल चीजें होगी तो कमोडिटी के मार्केट में एक हलचल बनेगी और क्रूड सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल रहता है। और ये वन ऑफ माय फेवरेट चार्ट है जिससे मुझे एक बूस्ट मिलता है कि आई एम इन राइट ट्रैक। आज मैं 18 साल हो चुका है कमोडिटी के अंदर, तो मुझे लगता है ये चार्ट देखने के बाद कि यस आई एम इन अ राइट ट्रैक, बिकॉज ये चार्ट मुझे दिखाता है कि कमोडिटी में अगले 5 सालों में क्या होने वाला है। आप देखिए 1970 से लेकर 1975 के बीच में ये रेशो क्या बताता है? कमोडिटी जीएससीआई मतलब कमोडिटी एंड S&P 500 एज यू नो इज रिप्रेजेंटिंग इक्विटी मार्केट। व्हेन वी प्लॉट बोथ ऑफ दिस, अगर हम दोनों के चार्ट को प्लॉट करते हैं तो हमें पता चलता है कि इक्विटी में तेजी है या कमोडिटी में तेजी है। तो अगर ये चार्ट में ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम बोलते हैं कमोडिटी में तेजी है। तो कमोडिटी में जब तेजी आती है तो ज्यादा करके हम कारण देखते हैं क्रूड ऑयल का, और क्रूड के साथ साथ गोल्ड भी होता है, क्योंकि देखो जियोपॉलिटिकल टेंशन या कंसर्न कुछ भी होता है तो कहीं ना कहीं क्रूड को पहले इंपैक्ट पड़ेगा और उसके बाद गोल्ड है, बेस मेटल है या बाकी कमोडिटीज को भी इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो वी हैव सीन कि 1973-74 के अंदर भी हमने प्राइसेस के अंदर जंप आते हुए देखा है। मंजूनाथ जी का सवाल है, वी हैव सीन वाज 0 फॉर दिसंबर। ओके मैं बीच बीच में अपडेट लेता भी रहूंगा। इनकेस अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है चैट विंडो पे डालते रहिए। थैंक यू सो मच। I think Vijay Lakshmi is getting a audio issue. Please check your connection. I think my audio is clear and my screen is visible. Okay. तो ऑयल क्राइसिस के टाइम पे हमने ये रेशियो को 1 से बढ़ते हुए 7.5 तक आते हुए देखा, जिसका मतलब है कि कमोडिटी के अंदर तेजी और खास करके क्रूड ऑयल के अंदर तेजी। बाद में हमने फिर से कंसोलिडेशन देखा और ये रेड लाइन है उसको हम मीन बोलते हैं। मीन मतलब होता है जैसे कोई पेंडुलम है, फॉर एग्जांपल ये मेरा पेन है और अगर यहाँ से पेन ऊपर जाता अगेन ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा तो मैं बोलूंगा ये मेरा मीन है। प्राइसेस चाहे इधर जाए वापस मीन पे आएगा, प्राइसेस इधर जाए तभी प्राइसेस मीन पे आएगा। मीन मतलब एक सेंटर पॉइंट। तो अगर हम लो और हाई का एक मीन निकाले, मीन इज अराउंड 4.11,
हमने देखा गल्फ वॉर हुआ, कमोडिटी के भाव में तेजी आई, रेशियो नॉर्थ तक पहुंच चुका था। फिर जैसे जैसे चीजें सेटल हुआ, हमने देखा 1919 तक इक्विटी मार्केट में जबरदस्त तेजी बनती हुई थी। आपने इंडियन मार्केट में सुना होगा केतन पारिक, तो हर्षद मेहता के कंसर्न के बाद हमने केतन पारिक के कंसर्न से पहले इक्विटी मार्केट को काफी बड़ा रैली अप होते हुए देखा। डॉट कॉम बबल बना, उसके बाद इक्विटी मार्केट में करेक्शन और कमोडिटी में हमने रैली बनती हुई देखी, और ये रैली कंटिन्यू कमोडिटी में हमने रुक रुक के चलता देखा। और 2008 के क्या देखा था आपने, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होने के तब तक हमने देखा कि गोल्ड, क्रूड, और आपको जैसे मैंने बताया 21 फरवरी 2008 यहाँ पे हमने देखा था कि क्रूड ने लाइफ टाइम हाई $150 का मारता हुआ दिखाई दिया। गोल्ड में भी हमने देखा 2011 अप्रैल तक काफी बड़ी तेजी बनते हुए दिखाई दी। तो ओवरऑल आप समझ के चलिए, कोई भी हलचल होता है तो कमोडिटी पे इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है। और अब अगर हम 2019 से देखें तो ये ग्राफ ऊपर जाने के लिए तैयार है, और जब भी ये ग्राफ ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं कमोडिटी में रैली आती है, और कमोडिटी में जब रैली आती है तो सबसे ज्यादा बड़ी रैली क्रूड और गोल्ड में आती है। और आप खुद देख लीजिए, पिछले एक साल के अंदर हमने कमोडिटी के प्राइसेस में तेजी देखी। उससे पहले थोड़ा सा एक हिंट आपको देता हूं कि अगर आपको एनर्जी मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है वो देखना है, तो इंडिया का पहली बार इंडिया में एनर्जी इंडेक्स लॉन्च हुआ है जिसमें प्योरली क्रूड और नेचुरल गैस का पार्टिसिपेशन है। और आप देखिए, ये मार्च से अगर हम देखें तो ये इंडेक्स 3200 के करीब था, और अब बढ़कर ये करीबन ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि 6000 के करीब भी पहुंचता हुआ दिखाई दिया। तो ऑलरेडी एमसीएक्स के ऊपर एनर्जी इंडेक्स लॉन्च हो चुका है, जिसके ऊपर भी आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मैं बात कर रहा था परफॉर्मेंस की। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो एमसीएक्स फ्यूचर्स के ऊपर 1350 रुपए से मार्केट में तेजी आई, और कल के डेट में हमने 6000 का लेवल ऑलमोस्ट छूते हुए देखा। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें, या ईयर एंड छोड़ दीजिए, अगर जनवरी से अभी तक की भी अगर हम बात करें तो करीबन 68% का जंप हमने क्रूड के प्राइसेस में देखा है। 68% इज नॉट अ स्मॉल फिगर। 68% का जंप हमने क्रूड ऑयल में देखा। इसका इंपैक्ट आपकी डे टू डे लाइफ पे भी पड़ता है, क्योंकि आप समझिए, अगर क्रूड महंगा होगा तो पेट्रोल और डीजल महंगा होगा, और पेट्रोल और डीजल महंगा होगा तो महंगाई होगी तो अल्टीमेटली चीजें ज्यादा कॉस्टलियर हो जाएगी, चाहे हम खाने पीने की चीज की बात करें या कोई भी चीज की है। तो आप समझ के चलिए, इतना जब वॉलेटिलिटी होता है तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप उसको हेज करके चले, आप अपने पोर्टफोलियो को इंश्योरेंस करके चलिए, या एज ए ट्रेडर आप इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढकर ला सकते हैं। वैसे अगर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में हमने 485 का रिसेंटली हाई लगते हुए देखा, और जून 2020 में अगर हम बात करें तो प्राइसेस वर अराउंड 116। हाँ, ये मंथली क्लोजिंग है, अगर लो में देखें तो हम 99 रुपए का भी लो लगते हुए देखा है। तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 132% की तेजी हमने नेचुरल गैस में आती हुई देखी। तो ये सब आप एनर्जी इंडेक्स के द्वारा भी पता कर सकते हैं, जहां पे 75% वेटेज क्रूड का होता है, 25% वेटेज नेचुरल गैस का होता है। तो जब भी ये इंडेक्स में तेजी आती है, जैसे आप निफ्टी बैंक निफ्टी या सेंसेक्स को देखते हैं, आपने देखा आज सेंसेक्स में 200 रुपए की तेजी आ गई, तो आप एक मानस बना लेते हैं कि हाँ, शेयर बाजार में तेजी आ रही है। वैसे ही अगर एमसीएक्स बुलडेक्स में तेजी आती है तो हम बोल सकते हैं कि सोने चांदी में तेजी आ गई है। मेटल इंडेक्स में तेजी दिखती है तो आप बोल सकते हैं बेस मेटल के भाव में तेजी बनी हुई है। वहीं अगर एनर्जी इंडेक्स को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्रूड और नेचुरल गैस में तेजी बन रही है। अगर हम कुछ एक अपॉर्चुनिटी इसमें रेशियो में भी होती है, क्योंकि कोई भी चीज जैसे सोना चांदी है, बोलने में तो हम बोलते हैं कि सोना और चांदी एक साथ चलते हैं, लेकिन नहीं, सोने और चांदी के अंदर भी डिफरेंस है, क्योंकि चांदी के अंदर बीटा मतलब वॉलेटिलिटी एज कंपेयर टू गोल्ड ज्यादा होती है। तो कभी भी आप देखेंगे जब बड़ी रैली आती है तो चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करती है, और जब भी गिरावट आती है तो चांदी में ज्यादा गिरावट रहती है। तो सिमिलरली हम क्रूड और नेचुरल गैस, क्योंकि प्रोसेस एक तरीका ऑलमोस्ट सेम होता है, तो ज्यादा करके हम देखते हैं इसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, और इसमें ट्रेड करने के लिए एनर्जी डेक्स जैसा प्रोडक्ट भी बना हुआ है। सपोज करो ये रेशियो नवंबर 2020 के अंदर वाज अराउंड 11, और हमें लगता है टेक्निकली कि ये रेशियो ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्रूड ऑयल को बाय करके नेचुरल गैस बेच सकते हैं, और इसी को एक अच्छे तरीके से हम काम कर सकते हैं, जिसमें रेशियो 3:1 का रहेगा, जिसमें नाम आता है
एनर्जी इंडेक्स, जहां पे 75% क्रूड का वेटेज होता है एंड 25% वेटेज जो होता है वो नेचुरल गैस का होता है। तो यहाँ पे भी हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जब जंप आता है तो क्रूड में ज्यादा रैली आती है। बट अप्रैल ऑनवर्ड्स आप देखोगे तो जैसे जैसे प्रोडक्शन में कंसर्न्स आने लग गया नेचुरल गैस के अंदर, हमने एकाएक नेचुरल गैस में बड़ी तेजी देखी है, क्रूड में भी तेजी बनी है। बट आप देखिए जो परसेंटेज ऑफ गेन है वो क्रूड के बजाय नेचुरल गैस में ज्यादा था। इसकी वजह से रेशियो 26 से 13 तक पहुंच चुका है। तो जब जब ये रेशियो में गिरावट आती है तो आप समझो क्रूड के मुकाबले नेचुरल गैस चलेगी। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक नया बेस बना रहा है और धीरे धीरे ये रेशियो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये रेशियो ऊपर की तरफ जाता है इसका मतलब या तो नेचुरल गैस में बड़ी गिरावट आएगी या क्रूड में बड़ी तेजी आएगी। तो नेचुरल गैस में एज ऑफ नाउ टेक्निकल छोड़कर अगर फंडामेंटल की बात करें तो यूरोप में अभी एनर्जी संकट बना हुआ है, चाइना में एनर्जी संकट बना हुआ है। तो ऐसे टाइम पे नेचुरल गैस में कोई बड़ा शार्प फॉल आ जाए ऐसा तो लग नहीं रहा है। तो इसका मतलब है अगर ये रेशियो को ऊपर जाना है तो इसका मतलब है क्रूड में ज्यादा बड़ी तेजी आएगी। और ऑलरेडी पिछले 2 दिन में हमने देखा, कि क्रूड में ओपेक के स्टेटमेंट के बावजूद अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी, जिसका मतलब है कि क्रूड में तेजी कायम रहेगी। और ये रेशियो अगर रिवर्ट कर जाता है ऊपर की तरफ तब भी आप समझ के चलिए कि नेचुरल गैस के मुकाबले क्रूड ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे टाइम पे आप एनर्जी डेक्स में भी बाइंग पोजीशन बना के ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 75% का वेटेज जो होता है वो क्रूड ऑयल का होता है। ये मैंने स्लाइड M6 से ही प्रेजेंटेशन से ली है, जहां पे हमने दिखाया है कि एनर्जी डेक्स का या क्रूड का या हम बोल सकते हैं जो एनर्जी कॉम्प्लेक्स है इसका इक्विटी से क्या कोरिलेशन है। तो हमने देखा कोरिलेशन इज ओनली 0.17। इसका मतलब है कि ये परफेक्टली हेजिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है। आप इस पे आप देखिए जैसे जैसे इक्विटी मार्केट के अंदर क्रूड मार्केट के अंदर गिरावट आई तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट, क्योंकि लो कोरिलेशन की वजह से आप इसमें अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं या पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम निफ्टी में भी बात करें तो एक एनर्जी निफ्टी एनर्जी करके इंडेक्स है, अगर इसके साथ कोरिलेशन लगा के देखें तो आप देखिए कि एमसीएक्स एनर्जी डायरेक्टली कमोडिटी ऐसे अंडरलाइन होने की वजह से इसके अंदर आपको ज्यादा क्लैरिटी दिखाई देती है। लेकिन ऑलमोस्ट जो रन अप था वो सेम है जिस ढंग से निफ्टी एनर्जी का मार्केट के अंदर मूवमेंट है। ओके सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी अगेन, कैन वी ट्रेड इन ऑल दिस? बिल्कुल मंजुनाथ जी, यू कैन ट्रेड इन एनर्जी इंडेक्स। मैं आगे वाली स्लाइड में आपको पूरा इन डिटेल और बताता हूँ। ये जस्ट एक पहले इनिशियल आज का जो फ्लो रहेगा, आई एम सॉरी मैंने पहले फ्लो डिस्कस नहीं किया था। तो बेसिक मैं आपको पहले एनर्जी मार्केट के बारे में बता रहा हूँ, व्हाई एनर्जी मार्केट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या क्या कोरिलेशन है, देन फैक्टर्स देखेंगे हम लोग, देन हम लोग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे कैसे ग्रैब किया जा सकता है, और फिर मैं आपको एज ए बिगनर आपके लिए स्ट्रेटेजी लाया हूं ऑप्शन में, एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर उनके लिए भी मैंने अपॉर्चुनिटी लाया हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए ऑप्शन आप जानते, आप लोगों में से कितने जन ऑप्शन जानते हैं? हम लोग 100 प्लस की ऑडियंस है, प्लीज चैट विंडो पर डाल के बताइए आप में से कितने जन ऑप्शंस करते हैं या ऑप्शन जानते हैं, और ऑप्शन क्यों करना चाहिए वो तो मैं आपको आगे बता ही दूंगा, बट ऑप्शन कितने जन करते हैं। चलिए इस फटाफट रिप्लाई भी आना चालू हो चुका है। थैंक यू मिलिंद, थैंक यू आलोक जी, थैंक यू सोम, रूप सिंह जी, वेरी गुड वेरी गुड, काफी जन। अच्छा विकास जी, आप ऑप्शन ट्रेड नहीं करते? बिल्कुल विकास जी, आपके लिए ये सेशन है और मैं इतना बेसिक चीज बताऊंगा जहां पे आप अपना कॉस्ट भी कम कर सकते हैं, रिस्क भी कम कर सकते हो और रिवॉर्ड बढ़ाकर ले सकते हैं। रणवीर जी, आई विल ट्राई माय बेस्ट, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है ऑप्शन में उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। थैंक यू। चलो काफी जन है हमारे साथ जिनको पता है, तो मैं ऐसा करूंगा ये जो सेशन है इसके अंदर आपको भी सरप्राइज लाने की कोशिश करूंगा, आपको भी सरप्राइज देने की कोशिश करूंगा। मैं ज्यादा करके कोशिश करता हूँ मेरे सारे वेबिनार में, तो जो की टेक अवे है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ब्रीफ इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत बार मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं ज्यादा करके फ्रूट्स नहीं खाता था 5 साल पहले, तो मैं ज्यादा करके देखता था और फ्रेंकली ज्यादा करके जब मेरे को कोई बोलता था कि भाई फ्रूट लेके आओ बाजार से, तो मैं देखता एप्पल 200 रुपए किलो। तो जनरली मैं कमोडिटी में काम करता हूँ, ऊपर से मारवाड़ी भी हूँ, तो मैं देखता 200 रुपया किलो महंगा है बहुत, नहीं लूंगा।
लेकिन बाजू की दुकान में देखता था, वो बोलता था सर ये 140 रुपए किलो ही है। तो मैं बोलता अरे यार ये सस्ती मिल रही है, अपन ये एप्पल ले लेते हैं। जैसे ही मैं 140 रुपीज की एप्पल लेकर खाता था, उसमें स्वाद नहीं आता था ज्यादा। तो मैं क्या सोचता था कि एप्पल तो खराब है। लेकिन जैसे ही मैंने मेरा थॉट प्रोसेस चेंज किया और मैंने 200 की जगह 220 रुपए किलो वाली एप्पल लेकर खाना चालू किया। देखिए, कोई भी जो वेंडर होता है वो कोशिश क्या करता है, अच्छी चीज आपको दे और अच्छी चीज का पैसा लगता है। तो जैसे ही उसने मेरे को 220 की चीज दी, मैं बोला 140 में और 220 में क्या फर्क है? तो बोला सर इसके अंदर जो हम बोल सकते हैं फ्रेशनेस का जो फर्क है वो आपको बाहर से नहीं दिखाई देगा, वो हमको पता है कब का एप्पल है ये। तो मेरे को पता है किन्नौर एप्पल होता है, रॉयल एप्पल होता है, कश्मीरी एप्पल होता है, इंटरनेशनल से भी है, ये सब चीज मेरे को बताया। लेकिन लिटरली जब मैंने किन्नौर 220 मार्केट में मिलता था, 140 150 में भी था, बट 220 का खाया और उसका जो स्वाद आया, आज पिछले 5 साल से मैं फ्रूट चालू कर चुका। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आप अगर पूरा चीज समझोगे कि व्हाई ही इज चार्जिंग मी 220 रुपीज रादर देन 140 रुपीज, तो यू विल गेट बेनिफिट। तो ज्यादा करके मेरे पास लोग आते हैं, सर आप तो मेरे को एक स्ट्रेटजी बता दीजिए मैं काम कर लूंगा। नहीं, स्ट्रेटजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनवायरमेंट क्या है, क्यों वो इंपॉर्टेंट है, कब मुझे ये स्ट्रेटजी यूज करनी है। आज हमने देखा मैथोलॉजिकल सीरियल्स काफी चल रहे हैं, सर मेरे को तो ब्रह्मास्त्र दे दीजिए, मैं तो जब मेरे पास कोई दुश्मन आएगा ब्रह्मास्त्र चलाकर मैं उसको मार दूंगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, डू एंड डोंट्स पता होना चाहिए कि ब्रह्मास्त्र कब चलाना है, कैसे चलाना है, चलाना भी है कि नहीं चलाना है। तो इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शंस आपको आते हैं, लेकिन ऑप्शन में कब एंट्री करनी चाहिए, कब रुकना चाहिए, और कौन से ऑप्शन में कब एंट्री करनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दो, आई विल टेक अनदर 5-10 मिनट्स, जहां पे मैं आपको, चेतन जी आपको जो लॉस हुआ है मैं उसका एक सॉल्यूशन बताता हूं, आप देखिए। अगर आपको बेनिफिट नहीं हुआ तो आप मेरे को फोन करके बताना, ठीक है। कमिंग बैक, तो हमने इसमें अभी तक देखा है कि क्रूड बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी जगह वॉलिटिलिटी जहां जहां पे होती है क्रूड का तो नाम लिया जाता है। इक्विटी से भी इसका कोरिलेशन है। इक्विटी के कोरिलेशन में मैं आपको एक नया चीज दिखाता हूं। इक्विटी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो जितने भी स्टॉक है, ये ऑलमोस्ट 40 स्टॉक्स है, आप देखिए खाली क्रूड ऑयल इक्विटी के इतने सारे स्टॉक को इंपैक्ट करते हैं। आप क्रूड में ऑप्शन के जरिए इक्विटी को भी आप एनालाइज करके चल सकते हैं। मतलब अगर सपोज आपका एक्सपोजर इक्विटी में है और आपको हेज करना है, लेट्स से हेजिंग के लिए मैंने आपको आगे चार्ट भी दिखाता हूं जो मैंने आपके लिए लेके आया हूं, तो वहां पे आप ऑप्शन इन कमोडिटी एंड इक्विटी ये भी कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं। कैसे बिठाएंगे वो मैं ब्रीफ बता रहा हूं, आज तो हमारा टारगेट खाली ऑप्शंस है। तो आप देखिए क्रूड ऑयल को जब बर्न किया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है, 20 डिग्री पे करेंगे तो गैस निकलेगी, और गैस के हमारे पास स्टॉक है आईजीएल, ओएनजीसी, गेल। अगर 70 डिग्री पे अगर बर्न किया जाता है तो हमारे पास पेट्रोल निकलता है, जिसकी वजह से एचपीसीएल, बीपीसीएल, आरआईएल, एसआर, इन सबको प्राइस पे इंपैक्ट पड़ता है। सर हम लोग पहले आप सौरभ जी ऑप्शन समझिए, फिर आप बताइए कहां पे आपने गलती की है, तो आपको ज्यादा पता चलेगा। क्योंकि देखिए आपने क्या गलती की वो मैं नहीं जानता, लेकिन आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहां पे आपकी गलती हो रही है। और मैं कहीं पे भी है तो आप गुडविल की टीम को बोल सकते हैं मुझसे कनेक्ट करने के लिए, मैं इजीली अवेलेबल हूं। कभी भी जैसा भी आप मेरे को बोलोगे मैं आपको और स्ट्रेटेजी बता दूंगा। 120 डिग्री पे अगर आप बर्न करेंगे तो नाफ्था मिलता है जो केमिकल्स के लिए काम आता है, कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, फ्यूल ऑयल, या हम बोल सकते हैं टार जो रोड्स एंड रूफिंग में काम आता है। तो कहने का मतलब है एक क्रूड और कम से कम आप देखेंगे तो उसके यूजेस 8 तरीके के यूजेस है, और इसका इंपैक्ट इक्विटी मार्केट पे भी पड़ता है। क्योंकि देखिए इक्विटी में जो भी कंपनी होती है, आइदर क्रूड के फॉर्म में उसका रॉ मटेरियल रहेगा, या रॉ मटेरियल लेने के बाद प्रोसेस करके जो आउटपुट रहेगा वो भी एनर्जी रिलेटेड रहेगा। तो कभी भी क्रूड के भाव में कोई भी चेंजेस आता है तो कहीं ना कहीं आपके स्टॉक पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। चेतन जी मेरा नंबर आप गुडविल से ले लीजिए, गुडविल को आप कनेक्ट कीजिए, उनके आरएमपी अवेलेबल है, वो आपको कनेक्ट करके आपको मेरे से कनेक्ट करवा देंगे। ओके, तो कभी भी आप देंगे कुछ भी, ये छोटा सा एक स्नैपशॉट लेके आया हूं। रिलायंस का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो रिलायंस और क्रूड ऑयल, आप देखिए जैसे जैसे क्रूड में तेजी आती है रिलायंस के स्टॉक में भी तेजी आती है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिलायंस में तो गिरावट आई थी सर, लेकिन क्रूड में भी तो गिरावट आई थी। अब कभी कभी ये परसेंटेज ज्यादा बड़ा फॉल आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए
इक्विटी के अंदर खाली रॉ मटेरियल इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या कॉल है, मैनेजमेंट के क्या प्लान है। बट अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो देखिए ये स्टार्ट कहां से किया था, दोनों एक साथ थे, बीच में बिछड़ गए थे और वापस एक साथ आ गए। तो दिस इज द टाइम कि यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी बिठा सकते हो। कैसे? क्रूड को बेचकर साथ में रिलायंस को लेकर होगा क्या, एक पर्टिकुलर 2-3 महीने के बाद दोनों हैंड इन हैंड आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रूड में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपको अच्छा प्रॉफिट मिला क्योंकि क्रूड को आपने बेचा और रिलायंस को लिया था, यहाँ पे नुकसान दिख रहा था। बट अचानक ही हमने देखा क्रूड में तेजी आ गई और रिलायंस में भी तेजी आ गई, तो रिलायंस का जो गैप है वो फुलफिल कर गया। तो ऐसे टाइम पे आपको समझना है, या तो कोई न्यूज होगी, अगर न्यूज नहीं है तो दोनों मैच करेंगे ही करेंगे। और ये बहुत अच्छी पेयर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, बट थोड़ा संभल कर आप ट्रेड कीजिए। ऐसे क्रूड और ओएनजीसी देखिए। अब आप देखिए ओएनजीसी में स्टोरी है, इसकी वजह से सितंबर मंथ में देखिए ओएनजीसी बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब या तो क्रूड में तेजी आ जाएगी या ओएनजीसी नीचे आ जाएगा। तो ऑन ए पेयर साइड व्हाट यू कैन डू, अरे सर मेरे को फ्यूचर में नहीं करना, अरे ऑप्शन है ना क्रूड का हमारे पास। आप क्या कीजिए, ओएनजीसी का मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, डोंट, मैंने कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया क्योंकि मार्केट को देखकर समझकर आपका रिस्क एपेटाइट देखकर आपको ट्रेड करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, ओएनजीसी का एक पुट ले लिया और क्रूड का एक कॉल ले लिया। होगा क्या, आइदर ओएनजीसी नीचे आना चाहिए या क्रूड ऊपर जाना चाहिए। और देखिए जब आप ऑप्शन में काम करते हैं तो रिस्क आपका डिफाइन है, तो इस ढंग से भी आप पेयर ट्रेडिंग कर सकते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ स्टॉक्स, 40 स्टॉक तो मैंने पिछले स्लाइड में ही आपको बता दिए हैं, 40 स्टॉक तो मैंने ये स्लाइड में ही आपको बता दिए। इसके अलावा भी आप जाओगे तो देयर आर एन नंबर ऑफ स्टॉक व्हिच कैन बी कोरिलेटेड विद क्रूड ऑयल, और क्रूड में तो हमारे पास ऑप्शन है और निफ्टी 50 में भी ऑप्शन है। तो आप 50 स्टॉक निफ्टी के लेते हैं और लेट से उसमें 25 स्टॉक आपको ऑप्शन में अच्छे लिक्विड वाले मिल जाते हैं, या निफ्टी 100 के स्टॉक लेते हैं, तब आप ऑप्शन में पेयर ट्रेडिंग बिठाकर काम कर सकते हैं। बट ये प्रोफेशनल लेवल के लिए हो गए, बिगनर्स के लिए मैं आगे आपके लिए कुछ लाया हूं। लेकिन जो लोग को लगता है कि सर हमको कुछ नया नहीं मिलेगा क्या ये सेशन में, उनके लिए है अयुटी, आई थिंक इज दिस अ न्यू वन, ऑप्शन इन क्रूड एंड ऑप्शन इन निफ्टी 50 एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स। ओके थैंक यू। देन आईओसी देखिए, ये दोनों एक साथ चल रहे थे, आईओसी नीचे था क्रूड ऊपर था, अचानक ही क्या हुआ, आईओसी ऊपर आ गया क्रूड नीचे आ गया। देन इस ढंग चलते, अब क्या दिखा रहा है, ये देखिए दोनों में डिफरेंस बराबर चल रहा है, बट ये डिफरेंस कहीं ना कहीं मैंने 2 महीने में मैच करता, जैसे अप्रैल से लेकर मई के बीच में मैच किया, मई से लेकर जुलाई के बीच में मैच किया, तो ये मैच करेगा ही करेगा। तो आपको क्या करना है, स्टॉक्स ज्यादा बढ़ गए हैं, कमोडिटी ज्यादा नहीं बढ़ी है, तो आइदर क्रूड शुड गो अप, आइदर दिस स्टॉक शुड कम डाउन। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑप्शन में इसकी स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं। हिंद पेट्रो सेम वे, देखिए यहाँ पे ज्यादा गैप आ गया था, अल्टीमेटली मैच कर गया, अब ये गैप फिर से बढ़ना चालू हो गया। और ज्यादा करके देखिए स्टॉक्स के अंदर होता क्या है, मैनेजमेंट कॉल, गवर्नमेंट पॉलिसी, तो स्टॉक्स ज्यादा बीटा रहता है, स्टॉक्स में ज्यादा मोमेंटम होता है, तो आप इस ढंग से पोजीशनिंग बनाकर काम कर सकते हैं। थैंक यू। हेजिंग आफ्टर 3, यस हेजिंग आफ्टर 3:30 भी पॉसिबल है, वो मैं आपको आगे बताता हूं। सो आप समझिए रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, आप जो लोग कॉर्पोरेट्स है एसएमई, उनके लिए भी है अपॉर्चुनिटी इसके अंदर। रिस्क मैनेजमेंट इज ए इंपॉर्टेंट इन एनर्जी इंडस्ट्री बिकॉज वॉलेटिलिटी इन ऑयल और नेचुरल गैस प्राइसेस विल इंपैक्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी। जो वॉलेटिलिटी है वो बिजनेस को इंपैक्ट करती है या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देती है, क्योंकि डीरेगुलेशन और जो इंक्रीज इन वॉलेटिलिटी हो रही है, जिस ढंग से गवर्नमेंट डीरेगुलेशन कर रही है और जो वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं नीड देती है कि हमारे पास एनर्जी के अंदर और अपॉर्चुनिटी आए। तो इसी को देखते हुए एमसीएक्स पे आज आपके पास फ्यूचर्स अवेलेबल है, आज आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, और आज आपके पास इंडेक्स भी अवेलेबल है। तो इस ढंग से हम लोग काम कर सकते हैं। देखिए ये एमसीएक्स का प्रोडक्ट बास्केट है, जहां पे हम इंडेक्स के अंदर हम देखें तो बुलडेक्स, मेटल इंडेक्स और एनर्जी इंडेक्स भी है। वहीं अगर एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की ट्रेड होते हैं, और ऑप्शन के अंदर काफी लिक्विड ऑप्शन क्रूड में हमारे पास है। ओके, आई थिंक संगीता जी आप अपने एंड पे चेक कीजिए, आई थिंक वॉइस इज क्लियर फ्रॉम माय साइड। तो इस ढंग से हमारे पास एमसीएक्स के बास्केट में प्रोडक्ट है।
और लिक्विडिटी की बात करें, देखिए क्रूड के अंदर ये आई थिंक लास्ट वीक का है, बट अभी भी अगर आप देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट भी काफी अच्छा है, बिडास्क भी अच्छा बना हुआ है, लिक्विडिटी काफी बनी हुई है, ऑप्शन चेन मैंने यहाँ पे राइट साइड में रखा है, तो आप देखिए काफी अच्छी लिक्विडिटी बनी हुई है, चाहे कॉल की बात करें चाहे पुट की बात करें, तो कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटी बनती है तो यू कैन गो अहेड विद क्रूड ऑयल ऑप्शन। अब हम देखते हैं क्रूड का जब हम नाम लेते हैं तो वॉलेटिलिटी बिल्कुल साथ में रहती है। डेफिनेटली रामता जी, मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी मेरा दूंगा, अदरवाइज यू कैन कनेक्ट विद गुडविल। गुडविल ऐसे वेबिनार आपके लिए टाइम टू टाइम लाती रहेगी, कभी भी आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं, और कुछ भी क्वेरी है तो आप गुडविल को भी कनेक्ट करके चल सकते हैं। तो कमिंग बैक, जब हम क्रूड का नाम लेते हैं तो वॉलेटिलिटी का नाम फ्री में आ जाता है। तो ये देखिए 2007 से लेके 2019-20 तक के अगर मैंने एक सिनेरियो देखा है, तो देखिए जैसे ही ये रेड वाला जो है वो क्रूड इंप्लाइड वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। तो क्रूड वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्या दिखाता है कि क्रूड में वॉलेटिलिटी आई, आप देखिए मार्केट में बड़ा मोमेंटम, बड़ा मार्केट में $150 का तेजी आया और मार्केट क्रैश भी कर गया। जैसे वॉलेटिलिटी कमजोर हुई, मार्केट एक रेंज में आ गया, फिर से वॉलेटिलिटी बढ़ी। देखो वॉलेटिलिटी ये नहीं बताती कि मार्केट में तेजी आने वाली है कि मंदी आने वाली है, इट कुड बी अ फॉल, इट कुड बी अ गेन, बट वॉलेटिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हम ऑप्शन में काम करते हैं तो ऑप्शन का सबसे बड़ा दोस्त जो होता है, दोस्त और दोस्त दोनों अलग है, दोस्त मतलब फ्रेंड और दोस्त मतलब सिन, कुछ गलती की, तो सबसे बड़ा दोस्त और दोस्त जो होता है वो होता है टाइम या वॉलेटिलिटी। तो अगर हम वॉलेटिलिटी की बात करें तो क्रूड में वैसे भी वॉलेटिलिटी ज्यादा होता है। तो आपको पहले ये समझना है कोई भी ट्रेड करने से पहले कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी कब आने वाली है, क्योंकि जब आपको ये पता चल जाए मार्केट में वॉलेटिलिटी आने वाली है, तो अगर आपने तेजी कर रखा है तब भी आप उसमें गेम आराम से, मतलब ट्रेड सेटअप बैठा सकते हो, मंदी आने वाली है तब भी आप ट्रेड सेटअप बिठा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्रूड में ट्रेड करने के लिए आपको वॉलेटिलिटी पता होनी चाहिए कि वॉलेटिलिटी क्या है और क्यों है, वॉलेटिलिटी क्यों है और कब आने वाली है। हमने जब मैंने सीख रहा था कमोडिटी मार्केट, तो मैंने सीखा कमोडिटी में कब क्यों कहां। तो सिमिलरली वॉलेटिलिटी कब आने वाली है, क्यों आने वाली है और कहां आने वाली है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कमोडिटी ट्रेडिंग विद ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग विद क्रूड ऑप्शंस। अप टिल नाउ इज एनीथिंग व्हिच कैन बी डिस्कस राइट नाउ? ऑलमोस्ट मैंने अभी ऑप्शंस के ऊपर आना स्टार्ट कर रहा हूं। एम आई क्लियर? कहीं पे कुछ मैं काफी फास्ट जा रहा हूं या काफी स्लो जा रहा हूं, या कोई लॉजिक है या कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आया, प्लीज लेट मी नो। शैल वी मूव अदर, बिकॉज क्रूड एंड वॉलेटिलिटी, अभी तक मैं आपको जो बता रहा था वो क्या बता रहा था कि क्रूड क्यों है, किस लिए है, कैसे कोरिलेशंस होते हैं, और अब हम आते हैं वॉलेटिलिटी के ऊपर और कब क्यों कहां, कि क्रूड में कब आने वाली है वॉलेटिलिटी, कहां आने वाली, किससे आने वाली, ये समझेंगे। प्लीज चैट विंडो पे डाल के बताइए। इज सर यू आर बिट फास्ट, ओके आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कूल, स्पीड थोड़ा स्लो करता हूं मैं, ओके नहीं देखिए मेरा एजेंडा बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, इसलिए मैंने पहले ही सेशन बताया, मेरे को टाइम बाउंड मेरे को बांधने की जरूरत है, अदरवाइज आई कैन टेक फॉर 1.5 आवर 2 आवर 3 आवर, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता आई एम रेडी। जो टाइम है वो मुझे सर्वानंद जी बता सकते हैं कि इफ आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम जस्ट लेट मी नो, बट आई विल मेक श्योर कि आपको स्ट्रेटेजी और कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार गाड़ी चलाने आ गई आपको, एबीसी एक्सीलेटर ब्रेक एंड क्लच अगर आपको यूज करने आ गया, तो आप चाहे फरारी चला लीजिए, चाहे मर्सिडीज चला लीजिए, चाहे नैनो चला लीजिए, कुछ भी चलाइए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। श्योर आई विल बी स्लाइटली स्लोअर, बट आई विल जो टाइम है वो भी मैं देखता चलूंगा। सो आई थिंक एम आई क्लियर एवरीवन? प्लीज मेरे को चैट विंडो पे डाल के बताइए कि अब तक जो मैं प्लेटफॉर्म जो क्रिएट कर रहा था, एनवायरनमेंट जो क्रिएट कर रहा था, वो सही है, आपको यहां तक समझ में आया? शैल वी मूव आगे? ओके, थैंक यू सो मच आलोक जी, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, क्रूड एंड वॉलेटिलिटी गो हैंड इन हैंड। तो अब हमको देखना है कि ऐसे क्या फैक्टर है जिसकी वजह से क्रूड में तेजी या मंदी आती है। चलिए चैट विंडो पे डाल के बताइए आपको क्या लगता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से क्रूड में तेजी या मंदी आती है। प्लीज आपका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 114-15 जन हो चुके हैं इस वेबिनार में। प्लीज चैट विंडो पे डाल के बताइए मेरे को, आपको क्या लगता है ऐसा क्या फैक्टर है जिसकी वजह से क्रूड में तेजी या मंदी आती है।
प्लीज पार्टिसिपेशन मेरे को चाहिए, ताकि देखिए अगर हम लोग पार्टिसिपेशन रखेंगे तो आपको भी, यस, इन्वेंट्री, डिमांड, सप्लाई, जियोपॉलिटिकल टेंशन, GDP we can call as economical data, very good. OPEC meeting is one of the most important. International demand supply, very good. War is called as geopolitical tension, हम बोल सकते हैं मनोज जी. Economical data, very good. Dollar index, very good. विशाल जी ने बहुत अच्छा बताया. गवर्नमेंट पॉलिसी, या हम बोल सकते हैं कि ड्यूटीज पे कुछ चेंजेस होता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्राइस गिरेगा, वेरी गुड. कोविड, यस, कोविड तो एक रिसेंट था. चलिए, चलो मैं इसी को आगे लेके चलता हूं. तो देखिए आपने जो जो पॉइंट बताया वही मैं लेके आया हूं. तो पहला है प्राइस रूलिंग इन इंटरनेशनल मार्केट. अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस में गिरावट आएगी तो हमारे इधर भी गिरावट बनेगी. जस्ट अ मिनट. ओके, तो इंटरनेशनल में सपोज करो हम बोलते हैं कि $80 का भाव चल रहा है, इनटू हमारे यहाँ पे रुपया चल रहा है फॉर एग्जांपल 75. अगर मैं सिंपल है 80 इंटू 75 मतलब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस इनटू करेंसी, जो यूएसडी आना करेंसी, इसको करते हैं तो 6000 का भाव आता है. और कल हमने 6000 का भाव क्रूड में आते हुए देखा है. एम आई क्लियर? तो कभी भी आपने गल्फ ऑफ मैक्सिको, वेरी गुड सौरभ जी, गल्फ ऑफ मैक्सिको में रिसेंटली 2 तूफान आए थे जिनका नाम है इडा एंड निकोलस, जिसकी वजह से हमने सप्लाई डिस्टर्बेंस देखा और सबसे बड़ा कारण बना जिसकी वजह से क्रूड में तेजी आई. तो क्रूड का कन्वर्शन कैसा है? इंटरनेशनल मार्केट इनटू करेंसी. अब देखिए दो मार्केट इंपॉर्टेंट है, करेंसी भी है और इंटरनेशनल मार्केट भी. अगर इंटरनेशनल में क्रूड के भाव $80 से 85 हुआ तब भी एमसीएक्स के क्रूड पे चेंजेस आएगा. रुपये में गिरावट आ गई या रुपये में मजबूती आ गई, उसका भी इंपैक्ट क्रूड पे आएगा. तो कहीं ना कहीं क्रूड के ऊपर इंपैक्ट करेंसी से भी आता है और इंटरनेशनल मार्केट से भी बनता है. सेकेंडली करेंसी एक्सचेंज जो हमने डिस्कस किया है, स्पेशली डॉलर, कि डॉलर में तेजी मंदी होती है उसका इंपैक्ट करेंसीज पे आता है और करेंसीज का इंपैक्ट कमोडिटी पे पड़ता है. अदर फैक्टर्स लाइक इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हमारे एक फ्रेंड ने बताया भी था, जीडीपी का अगर कुछ भी डेटा आता है, रिटेल सेल्स, ये मतलब इकोनॉमी की जो हेल्थ है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो इंडस्ट्री ग्रोथ खराब है, जैसे लास्ट ईयर हमने देखा शटडाउन हुआ, इकोनॉमी बंद हो गई, क्या हुआ? इंडस्ट्रियल ग्रोथ में गिरावट आई, क्रूड में गिरावट आ गई. तो वी कैन से डायरेक्ट रिलेशनशिप विद इकोनॉमी, बट एक हद तक. ये नया पॉइंट है, लोगों को, बहुत जनों को ये थोड़ा सा चिंतित करता है. मतलब क्रूड में तेजी, इसका मतलब है इकोनॉमी अच्छी है, बराबर. क्यों? कंजम्पशन ऑफ क्रूड बढ़ेगा मतलब इकोनॉमी बढ़ रही है, बट एक लिमिट तक. अगर $90 के ऊपर क्रूड में तेजी बन जाती है तो यही तेजी इकोनॉमी को नेगेटिव इंपैक्ट करेगी. फॉर एग्जांपल शुगर अच्छी होती है, अगर हम शुगर खाते हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बेनिफिट मिलता है, स्वाद आता है. लेकिन शुगर अगर आप ज्यादा खाते हो, कोई भी चीज एक्सेस होती है तो वो एडिक्टेड हो जाती है और चीजें खराब करती है. तो क्रूड में जो तेजी आती है वो इकोनॉमी को सपोर्ट तो करती है, बट कहीं ना कहीं ज्यादा आने की वजह से प्राइजेस के अंदर, इकोनॉमी के अंदर गिरावट आती है. इकोनॉमी फैक्टर लाइक इंडस्ट्रियल ग्रोथ, देन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, रिसेशन, इन्फ्लेशन. ओपेक का आउटपुट कम है कि ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट है. चेंजिंग सिनेरियो ऑफ ऑयल डिमांड, जैसे हम सोलर पावर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इन्वेंट्री डेटा एवरी वेडनेसडे को आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसके बेस पे आप, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी हम लोग ट्रेड करते हैं, सिमिलरली हम इन्वेंट्री को देखकर भी वीकली एक्सपायरी जैसा सिचुएशन एमसीएक्स पे क्रूड ऑप्शन में बना के चल सकते हैं. ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन, तालिबान, यूएस, रशिया, इनके कुछ भी इंपैक्ट आते हैं, मिडिल ईस्ट से इंपैक्ट होता है तो प्राइसेस में इंपैक्ट पड़ता है. स्पेकुलेटिव बाइंग सेलिंग, या वेदर कंडीशन, जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको में हमने देखा तूफान आ गया, प्रोडक्शन हिट हुआ, प्रोडक्शन हिट होने से भाव में मोमेंट आ गया. तो इन शॉर्ट अगर मैं पॉइंट्स में अगर सम अप करूं तो हम बोल सकते हैं कि क्रूड में ट्रेड करने के लिए आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है. वो है सप्लाई एंड डिमांड, सीजनैलिटी, वेदर कंडीशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन्वेंट्री, एंड लास्ट इज करंट स्टेट एंड फोरकास्ट, कि करंट मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट का डायनामिक्स क्या है. अगर आगे जाके आपको ऐसा लगता है कि इकोनॉमी के अंदर तेजी आएगी या इकोनॉमी के अंदर मंदी आएगी, उसका भी इंपैक्ट प्राइस पे पड़ता है. इन सबको गेज करने के लिए एक वेबसाइट है, आज थोड़ा शॉर्ट ऑफ टाइम है इसके लिए मैं इन डिटेल में नहीं जाता हूं, बट एक वेबसाइट है, आप चैट विंडो पे नाम डाल के बता सकते हैं मेरे को,
forexfactory.com। अगर मेरी टीम से कोई अवेलेबल है तो प्लीज वेबसाइट का नाम भी डाल दीजिए सो दैट सबको भी पता चले। तो forexfactory.com एक वेबसाइट है जहां पे आपको, थैंक यू अयूब सर, वांट टू नो द वेबसाइट नेम वेयर यू गेट द इन्वेंटरी डेटा। यस विशाल जी, आपके लिए ये forexfactory.com पे भी आपको मिल जाएगा और investing.com पे भी मिल जाएगा आपको। इधर आपको क्रूड की इन्वेंट्री, अच्छा forexfactory.com पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे आप forexfactory.com पे जाओगे और लोगों पे कर्सर लेके जाओगे तो यू विल गेट दिस ग्रीन कलर कर्सर वी कॉल्ड एज एनर्जी एक्सचेंज। तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे आपको सारी न्यूज, सारा डेटा, सब आपको क्रूड ऑयल को जो इंपैक्ट करता है उसी का मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, इंडस्ट्री का प्रोडक्शन घट रहा है तो क्रूड के लिए नेगेटिव है। चाइना के अंदर न्यू लोन बढ़ रहा है, तो अगर लोन लोगे तो मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए लोगे, तो जब फाइनेंशियल एक्टिविटी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन ऑफ मेटल क्रूड बढ़ते हैं। देन यूएस से सीपीआई डेटा स्टेबल है, ठीक है। एपीआई वीकली डेटा आता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री, गैसोलीन इन्वेंट्री इज आल्सो वन मोस्ट इंपॉर्टेंट। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी यूएस में क्या है, तो 15 अक्टूबर को एक्टिविटी में भारी गिरावट है, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट डॉलर पे पड़ेगा और डॉलर के साथ साथ क्रूड पे पड़ेगा, क्योंकि एक्टिविटी में कमजोरी है तो कंजम्पशन ऑफ क्रूड कम होगा तो थोड़ा बहुत गिरावट आएगा, लेकिन डॉलर की गिरावट के चलते एक्चुअली हम देखते हैं कि कमोडिटी में तेजी बनती है तो थोड़ा ड्रॉप आ सकता है। तो इस ढंग से हम लोग ओवरव्यू बना सकते हैं आगे जाकर कि मार्केट के अंदर कैसा सिनेरियो है। यूएस डेटा आता है तो क्रूड में स्पाइक आता है, बिल्कुल सौरभ जी, इसीलिए मैंने आपको ये वेबसाइट बताई है क्योंकि आपको तुरंत पता चल जाएगा। सीपीआई का डेटा 13 तारीख को बुधवार को आने वाला है शाम को 6 बजे। आप देखिए क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का डेटा कब आने वाला है, थर्सडे आने वाला है, क्योंकि सोमवार को आई थिंक डेटा रिलीज नहीं हो रहा है, इसके लिए 14 अक्टूबर को 8:30 बजे क्रूड का डेटा आएगा। तो अगर पहले से आपको पता रहे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा खराब आ रहा है तो डॉलर में गिरावट, कमोडिटी में तेजी, लेकिन अगर यूएस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर, अगर यूएस की इकोनॉमी में गिरावट है तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव है। साथ में आप देखिए 13 अक्टूबर बुधवार को ओपेक की मंथली रिपोर्ट आने वाली है और साथ में एफओएमसी इकोनॉमी का, यूएस इकोनॉमी की मीटिंग का अपडेट भी देगा। तो ये सब डेटा काफी इंपॉर्टेंट होता है और शाम को 6 बजे जब डेटा आता है, नहीं सौरभ जी, एवरी थर्सडे नहीं, इनकेस अगर मंडे हॉलीडे होता है तो हम लोग देखते हैं थर्सडे को इन्वेंट्री आती है, अदरवाइज बुधवार को 8 बजे क्रूड की इन्वेंट्री, थर्सडे को नेचुरल गैस की इन्वेंट्री आती है और किसी दिन अगर सोमवार को छुट्टी होती है तो थर्सडे के दिन ही क्रूड और नेचुरल गैस की इन्वेंट्री बनती है। क्लियर है? शैल वी मूव फॉर नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने क्या देखा कि क्रूड को वॉलेटिलिटी दोनों साथ में चलता है और वॉलेटिलिटी आती क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिकल डेटा। सर हाउ टू फाइंड इज मोर इम्पैक्ट, सर ये आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए रेड कलर का जो आ रहा है वो हाई इंपैक्टफुल है, येलो मतलब लो और ऑरेंज मतलब मीडियम। इस ढंग से आपको पता चल जाएगा हाई इंपैक्ट डेटा क्या है, लो इंपैक्ट डेटा क्या है, मीडियम इंपैक्ट डेटा क्या है, एंड अकॉर्डिंगली आप पोजीशनिंग आपकी बनाकर चल सकते हैं। अब देखिए अभी तक मैंने क्या बताया, क्रूड और वॉलेटिलिटी साथ में चलते हैं, ठीक है। और वॉलेटिलिटी क्यों आती है, वॉलेटिलिटी डेटा की वजह से आती है। क्या हम पता कर सकते हैं वॉलेटिलिटी कब आने वाली है? प्लीज चैट विंडो पे डाल के बताइए, क्या हम पता कर सकते हैं वॉलेटिलिटी कब आने वाली है? सौरभ जी लिंक हमने पहले ही ऊपर डाला है, आप देख लीजिए, टाइम है 11:50 पे हमने ये लिंक डाली है फॉर यस ओके, थैंक यू अभय जी। तो क्या हम पता कर सकते हैं कि वॉलेटिलिटी कब आने वाली है? बिल्कुल, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निकल इंडिकेटर हम पता कर सकते हैं वॉलेटिलिटी कब आने वाली। इस टेक्निकल इंडिकेटर का नाम है चॉपीनेस इंडेक्स और ये ट्रेडिंग व्यू पे फ्री ऑफ कॉस्ट, अगेन मैं वर्ड यूज कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इनफैक्ट गुडविल के प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप गुडविल सपोर्ट टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, आपको ये इंडिकेटर के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। इस इंडिकेटर से आपको मदद मिलेगा कि मार्केट में मूवमेंट कब आने वाला है। देखिए ये इंडिकेटर आरएसआई जैसा ही है, बट आरएसआई प्राइस की स्ट्रेंथ बताता है और ये इंडिकेटर बताता है मूवमेंट कब आने वाला है, मतलब मार्केट साइडवे रहने वाला है
या मार्केट में मूवमेंट आने वाला है। तो ये इंडिकेटर 0 से 100 के बीच में ट्रेड करता है, और अगर ये समझो 61.8 के ऊपर है तो हम बोलेंगे मार्केट रेंज बाउंड है, बट वॉलिटिलिटी आने वाली है। अगर 38.2 के करीब है तो हम बोलेंगे मार्केट में मोमेंटम है, बट धीरे धीरे ये मोमेंटम गायब होने वाला है। क्लियर? जैसे ये चार्ट पे आप देखिए, क्विकली हम लोग चार्ट पे आते हैं, तो चार्ट पे देखिए ये मैंने डॉटेड लाइन 61.8 पे मैंने ड्रॉ किया है, और यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन लेट से 38 पे ड्रॉ किया है। ठीक है, अब होगा क्या, अगर ये चॉपी इंडिकेटर नीचे की तरफ आ रहा है, इफ ही इज गोइंग डाउन, तो वी कैन सी वॉलिटिलिटी इज देयर इन द मार्केट, मार्केट में वॉलिटिलिटी है। वॉलिटिलिटी और डायरेक्शन बोथ आर डिफरेंट थिंग। आप ये समझ के चलिए कि वॉलिटिलिटी और डायरेक्शन अलग अलग चीज है। आप सोच रहे हो मार्केट में तेजी आ रही है, वॉलिटिलिटी नहीं। आपको ये समझना वॉलिटिलिटी आ रही है, मार्केट ऊपर भी हो सकता है, मार्केट नीचे भी हो सकता है। तो ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए मार्केट में वॉलिटिलिटी है या नहीं है। नहीं तो होगा क्या, आपने कॉल बाय कर लिया, मार्केट में वॉलिटिलिटी नहीं है, तो उसका जो प्रीमियम है वो वाइप आउट हो जाएगा, वो वाइप आउट हो जाएगा, आपको नुकसान हो सकता है। तो मेरे जो चेतन जी ने फ्रेंड, मेरे जो दोस्त है चेतन जी, उन्होंने डाला कि सर मुझे नुकसान हुआ, तो उसमें ज्यादा करके क्या होता है, टाइम वैल्यू इरोड हो जाती है। तो मैं आज आपको नेक्स्ट स्लाइड में यही बताने वाला हूं कि ट्रेड करने से पहले सेटअप कैसे देखना है आपको। तो देखिए चॉपी इंडिकेटर अगर नीचे आ रहा है, इसका मतलब मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ने वाली है, तब आपको कॉल लेके काम करना है, तब आपको कॉल लेके काम करना है, तब आपको पुट लेके काम करना है, मतलब ऑप्शन लेके काम करना है। लेकिन जब ये इंडिकेटर ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब मार्केट में मोमेंटम कम रहेगा, और अगर आपको तेजी लगता है तो ऑप्शन राइट करके काम करना चाहिए आपको। मार्केट में जैसे अभी यहाँ पे आप देखिए अगस्त से लेकर नवंबर तक ये इंडेक्स ऊपर जा रहा था, पर्टिकुलर जो भी कमोडिटी है, तो ये ऐसे टाइम पे आपको करना क्या है, आपको ऑप्शन बेच के काम करना है, तो आपको पैसा अच्छा मिलेगा। अगर आपने ऑप्शन लेके काम किया तो आप बोलोगे सर आपने बोला था कि तेजी मतलब कॉल बाय कर लो, मैंने तो कॉल बाय किया, बट फिर भी मुझे पैसा नहीं बना। आपके साथ क्या ऐसा होता है कि आपने कॉल बाय किया और मार्केट में मोमेंटम गायब हो गया और मालूम पड़ा कॉल का जो वैल्यू है वो डिटोरेट होने लग गया? प्लीज चैट विंडो पे डाल के बताइए, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपने कोई भी कॉल या पुट ले लिया, तेजी मंदी के लिए कॉल या पुट ले लिया आपने, और लेने के बाद मार्केट में मूवमेंट गायब हो जाता है और प्रीमियम इरोड हो जाता है? होता है आपके साथ? हमेशा ही होता है। तो उसी का इलाज है, उसी का इलाज है ये चॉपीनेस इंडेक्स, कि जब भी आप ऑप्शन ले रहे हो तो आप मेक श्योर करो ये इंडिकेटर ऊपर जाता हुआ नहीं दिखना चाहिए, नीचे जाता हुआ दिखना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट में वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। इससे क्या होगा, जो आपका टाइम वैल्यू इरोड होना है वो नहीं होगा। सर मैं तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में बाय सेल करता हूं। सौरभ जी बराबर है, लेकिन अगर ऑप्शन के साथ करोगे तो कॉस्ट कम लगेगा आपका, और कैसे लगेगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। राजू राम जी बिल्कुल आपके साथ ऐसा ही होता है सर। उसी का सॉल्यूशन आज के इस वेबिनार में लिया, जहां पे गुडविल ने ये चीज समझी और आपको एक नया मौका, जो हमारा वेबिनार का नाम है, उसी के लिए लिया है। तो अभी तक हमने ये देखा कि चॉपी इंडिकेटर अगर आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कॉल लिया और ऑप्शन ऊपर आना, ये इंडिकेटर ऊपर आना चालू हो गया, इसका मतलब वो ऑप्शन में पैसा लगेगा ही। उसको कैसे रिपेयर करना है स्ट्रेटजी को, उसके लिए भी आप गुडविल को भी कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये क्रूड का भाव अप्रैल में कंसोलिडेट करने लग गया, मार्च से अप्रैल में। क्यों? आप देखिए यहाँ पे ये इंडिकेटर धीरे 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 ऊपर जाने लग गया, और जैसे जैसे ये ऊपर गया, ऊपर में ये 78 तक चले गया। तो जैसे जैसे ये ऊपर गया आप देखिए मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चले गया। मार्केट 4250 के नीचे नहीं जा रहा है और 4350 के ऊपर नहीं जा रहा, 44 के ऊपर नहीं जा रहा, कहने का मतलब एक रेंज में हो रहा है। और जैसे ये इंडिकेटर देखो ऊपर से यू टर्न ले लिया, आप अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए। और जैसे ये नीचे आना चालू हुआ, इमीडिएटली देखो मार्केट में ब्रेकआउट आ गया और मार्केट में मूवमेंटम, यहाँ पे देखिए कैंडल के साइज छोटे छोटे थे, बीच में बड़ा भी हो रहा था, बट आप देखिए ब्रेकआउट आ गया। अब वापस मार्केट थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेशन होने लग गया है। यहाँ पे मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप देखिए मई के बाद जून में, मई एंड में वापस ये ऊपर पहुंचा, और जैसे ये नीचे आने लगा आप देखिए मार्केट में ब्रेकआउट आ गया, मोमेंटम आ गया, और मार्केट
4600 से 5600 तक का जंप दिखा दिया। तो आपको ये समझना है एंट्री कब लेनी है। तो डेली चार्ट पे अगर आपने चॉपीनेस देख लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि आज, कल, परसों जो भी है, या 1-2 महीने के लिए भी अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे करना क्या है, मुझे ऑप्शन बाय करके काम करना है। मुझे ऑप्शन बाय करके काम करना है तो ही मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा। क्लियर है? देन सपोज यहाँ पे आप देखिए अब ये अपॉर्चुनिटी वापस लूज हो रही है तो मार्केट देखिए बीच में कंसोलिडेशन में चले गया। अब छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो ऐसा ही होता है। देखिए 26 सितंबर से हुआ क्या, ये चौपी इंडिकेटर ऊपर जाना चालू हो गया। जैसे ये ऊपर जा रहा है आप देखिए यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करने लग गया है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे फिर से ये इंडिकेटर नीचे आया, मार्केट में बड़ा मोमेंटम पहले नीचे का फिर ऊपर का आना चालू हो गया। तो आपको खाली ये समझना है कि मार्केट का मोमेंटम है या नहीं है। जब भी ये इंडिकेटर ऊपर आएगा मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा, जैसे ये इंडिकेटर नीचे आएगा मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। अब आप ये देखिए अक्टूबर में 1 अक्टूबर के बात है, शुक्रवार को मार्केट कंसोलिडेशन में था और यहाँ पे हमने देखा प्राइजेस में इंडेक्स में नीचे गिरावट आ रही है और प्राइजेस में एक ब्रेकआउट आया जो 5520 से 5620 तक का लेवल दिखा दिया 15 मिनट के चार्ट पे। तो इस ढंग से आप इंट्राडे कर रहे हैं, चाहे कैरीड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, आपको चॉपी इंडिकेटर बताएगा कि मार्केट के अंदर मोमेंटम है या मार्केट में मोमेंटम नहीं है। और जब भी ये इंडिकेटर ऊपर की तरफ जा रहा है आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे सपोज आपने बाय किया और मार्केट में झटके से ऊपर आ गया तो आप देख लीजिए अगर ये इंडिकेटर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो पहले प्रॉफिट बुक कर लीजिए फिर नया पोजीशन बनाइए। क्योंकि ज्यादा करके जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस या ट्रेंड में रिट्रेसमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो चॉपी इंडिकेटर हमने देखा कि ये इंडिकेटर हमें बताता है कि मार्केट में बाय करके काम करना है या सेल करना के काम करना है। अब हम देखते हैं ट्रेडिंग विद ऑप्शन। देखिए ऑप्शन में ट्रेड करने के काफी एडवांटेजेस है। पहला है ऑप्शन रिस्की नहीं है, लेस रिस्की है एज कंपेयर टू फ्यूचर। एक्सपेंसिव नहीं है, जो आपका ब्रोकरेज फ्यूचर्स पे लगता है उससे काफी कम आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। लीवरेज एक्चुअली आपको ज्यादा मिल जाता है। सेकेंडली फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब आपको ऑप्शन फ्यूचर के साथ करना है तब आप कर सकते हैं, सिंगल लेग, मल्टी लेग, इंडेक्स के साथ जैसा भी आपको करना है ऑप्शन को आप करके चल सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने कॉस्ट का भी बताया है यहाँ पे। लेट्स से क्रूड का भाव 4800 है और अगर आप एक फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आपको करीबन टैक्सेस 91-92 रुपीस के करीब मिलता है और वही ऑप्शन में करते हैं तो आपको कॉस्ट लगता है 7 रुपया 22 पैसा। ये 4800 के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है। अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो कहीं ना कहीं फ्यूचर्स के अंदर अगर 100 रुपए की तेजी आ गई और आपने कैप्चर कर भी लिया तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 3.55 आता है। लेकिन ऑप्शन में ट्रेड करने की वजह से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको 200% के करीब का बन जाता है अगर आपका प्रॉपर एंट्री और एग्जिट होता है। तो कहने का मतलब है आप समझ के चलिए कॉस्ट क्या है आपका, खाली ब्रोकरेज से काम नहीं होता है। आप अगर जीरो ब्रोकरेज या लो ब्रोकरेज में भाग रहे नहीं, आपको इंपॉर्टेंट समझना है कहां रिटर्न बन सकता है। तो ऑप्शन में आप ट्रेड कीजिए, ऑप्शन में आपको रिटर्न ज्यादा बनेगा, अच्छा बनेगा और बेनिफिट बनेगा क्योंकि ऑप्शन के अंदर टैक्सेशन बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका काफी अच्छा बन जाता है। एक फायदा ऑप्शन का ये भी होता है क्योंकि जब आप फ्यूचर में काम करते हो तो आइदर आप तेजी कर सकते हो मार्केट में, आइदर आप मंदी कर सकते हो। बट ऑप्शन में एक अच्छी चीज ये है कि ऑप्शन में आप तेजी भी कर सकते हो, मंदी भी कर सकते हो, वॉलेटिलिटी आने वाली है तब भी आप ट्रेड कर सकते हो और मार्केट अगर रिंग बाउंड होने वाला है तब भी आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। देखिए सिंपल है, जब हम लोग को तेजी लगती है तो हम क्या करते हैं, कॉल बाय कर लेते हैं। अगर हमको मंदी लगती है तो हम क्या करते हैं, पुट बाय कर लेते हैं। और इसका वाइस वर्सा हम लोग बना सकते हैं, अगर तेजी लग रही है तो कॉल बाय, मंदी लग रही है तो पुट बाय। लेकिन अगर आप सेलिंग करके भी ऑप्शन में काम कर सकते हो, अगर आपको तेजी लग रही है तो आप पुट को बेच दीजिए, अगर आपको मंदी लग रही है तो आप कॉल बेच दीजिए। इस ढंग से भी आप कॉम्बिनेशन बनाकर, मतलब कमोडिटी के अंदर ऑप्शन में तो ऐसा है अगर आपको तेजी लग रही है तब भी हमारे पास कुछ है करने के लिए, अगर मंदी लग रही है तब भी कुछ है और वॉलिटिलिटी है तब भी बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने कैटेगरी बना के दी है आपको
कि मार्केट में अभी आपको लग रहा है कि मार्केट में तेजी आने वाली है, तो आप कॉल को बाय कर लीजिए। आप बोलते नहीं सर प्रीमियम बहुत ज्यादा है, तो आप क्या कीजिए, स्प्रेड कर लीजिए, बुल कॉल स्प्रेड। उससे होगा क्या, आपने एक एट द मनी का कॉल लिया और ओटीएम मतलब ऊपर का एक कॉल राइट कर दिया। उससे होगा क्या, सपोज आपने 100 रुपए का एट द मनी कॉल लिया और 50 रुपए का ओटीएम भेज दिया, तो आपका इफेक्टिव कॉस्ट 50 रुपया पड़ा, लिमिटेड प्रॉफिट मिल गया, लेकिन आपका टारगेट अचीव हो जाता है, तो डेफिनेटली कॉस्ट इफेक्टिवनेस आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ऐसे ही है बुल पुट स्प्रेड, प्रोटेक्टिव पुट, कॉल बैक स्प्रेड, ये स्ट्रेटेजीज आप तेजी के व्यू के लिए बना सकते हैं। आप लोग ऑप्शन में कौन सी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, प्लीज चैट विंडो पे डाल के बताइए। मैं आपको आज 4 ऐसी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जो बहुत अच्छा है और बहुत तरीके से आप काम उसमें कर सकते हैं। प्लीज चैट विंडो पे डाल के बताइए आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी पता है और आप कौन सी स्ट्रेटेजी में काम करते हैं। सर मीनवाइल हमारे पास आ गए 2-4 सवाल। सर ऑप्शन में कमोडिटी, सर मनोज जी आपके साथ जो ड्राइवर है, सारथी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन इज वन ऑफ द सेफेस्ट। आज चक्कू है, चक्कू से आदमी को भी हम लोग काट सकते हैं और फ्रूट्स को भी काट सकते हैं। इट्स अप टू यू। अगर बिना नॉलेज के अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली रिस्की है। आज आप गाड़ी चलाते हैं, तो क्या गाड़ी चलाना रिस्की है या नहीं है? अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, नॉर्म्स पता है, रूल्स पता है कि गाड़ी आपको लेफ्ट साइड ही चलानी है, राइट साइड में नहीं चलानी है, तो क्या होगा, गाड़ी अच्छे से चलाओगे, एंजॉय करोगे। लेकिन आप बोलोगे नहीं मैं तो लेफ्ट साइड मैं तो राइट साइड ही चलाऊंगा, तो आगे से गाड़ी आएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मुंबई से बोल रहा हूं, तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बहुत अच्छा है, गाड़ी 100 की स्पीड पे चलती है, लेकिन मैं 100 की जगह पे 200 की स्पीड पे चलाऊंगा तो डेफिनेटली मजा भी आएगा, लेकिन एक्सीडेंट से कैजुअलिटी भी होती है। बट दैट डजंट मीन कि वो चीज खराब है। तो पहले आप समझिए कि कमोडिटी के अंदर पहला, कमोडिटी की वैल्यू जीरो नहीं होती है। इक्विटी में आपको डेफिनेटली एक्सपीरियंस खराब हो सकता है, बट कमोडिटी में वैल्यू जीरो नहीं होती। कमोडिटी इज मोर प्रेडिक्टेबल एज कंपेयर टू इक्विटी, बिकॉज इक्विटी के अंदर मैनेजमेंट का कॉल होता है कि मुकेश अंबानी क्या सोच रहा है कि उसे ये प्रोजेक्ट लेना है नहीं लेना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन कमोडिटी के अंदर गवर्नमेंट अवेलेबल है, स्टेट अवेलेबल है, मतलब मैक्रो लेवल पे काम होता है, माइक्रो लेवल पे नहीं होता है। सर कौन सा इंडिकेटर है ये? चेतन जी इस इंडिकेटर का नाम है चॉपीनेस इंडेक्स। ये ट्रेडिंग व्यू पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। यू कैन कनेक्ट विद द टीम, दे विल हेल्प यू आउट। सर व्हेन चॉपी इंडिकेटर आप इंडिकेट, बिल्कुल अगर चॉपी इंडिकेटर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको बाय नहीं करना है, कॉल बेच के काम करना है, या आप बुल कॉल स्प्रेड कर लीजिए। उससे क्या होगा, वॉलिटिलिटी कम भी होगा और आपका टारगेट भी अचीव होता है, तब भी आपका कम कॉस्ट में काम बढ़ सकता है। सर बाय कॉल और पुट और ओनली फ्यूचर? सर मेरे हिसाब से बाय कॉल बाय पुट डिपेंडिंग आपका क्या व्यू है। फ्यूचर सर बटरफ्लाई बिल्कुल एक अच्छी स्ट्रेटेजी मैंने आपके लिए लेके आया हूं, बताता हूं मैं। अच्छा आप ऑलरेडी कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। एवरेज ऑफ स्ट्रेटेजी 1:2, यस इसके लिए हमने कॉल बैक स्प्रेड का यूज करते हैं, वो भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। कैन वी गिव ट्रेड एक्शन इन ऑल? बिल्कुल मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज दे रहा हूं, आगे बता रहा हूं जिसपे आप काम कर सकते हो। ओके, तो तेजी है तो आप ये स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, मंदी है तो आप पुट ले सकते हो, पुट बैक स्प्रेड, बेयर पुट स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड, प्रोटेक्टिव कॉल। देन अगर आपको ऐसा लगता है मार्केट अभी तो रेंज बाउंड है, बट अगर कुछ मोमेंटम आया तो तेजी होगा। टेक एग्जांपल ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के डेटा के टाइम पे हमको पता है कि हाँ इन्वेंट्री में आज गिरावट आने वाली है, तो मार्केट के अंदर तेजी बन जाएगी। तो तेजी बन जाएगी तब आप लॉन्ग ट्रेडल यूज कर सकते हैं, लॉन्ग कॉल सिंथेटिक ट्रेडल, पुट शॉर्ट पुट बटरफ्लाई। या जैसे मेरे को लगता है कि इन्वेंट्री अब बढ़कर आने वाली है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, शॉर्ट स्ट्रैंगल बना सकता हूँ। जहां पे मैंने क्या किया, शॉर्ट स्ट्रैंगल में 2 कॉल पुट में मैं आगे आपको बताता हूँ कंस्ट्रक्शन कैसे है। तो इस ढंग से आप ये स्ट्रेटेजीज का यूज कर सकते हैं जैसा आपका व्यू है तेजी का मंदी का। क्विकली अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो आपको टोटल 6 पॉइंट का ध्यान रखना है। पहला है, पहले ऑब्जेक्टिव समझिए कि आप इंट्राडे में कर रहे हैं, 2-5 दिन के व्यू के लिए कर रहे हैं या मंथली पे कर रहे हैं। देन डिटरमाइन योर रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ, आपका रिस्क क्या रहने वाला है और
रिवॉर्ड क्या रहने वाला है। वॉलेटिलिटी चेक कीजिए, वो कहां से चेक होएगा, चॉपी इंडिकेटर से। आपको ये पता चल जाएगा मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी कब आने वाली है, मार्केट में वॉलेटिलिटी कब गायब होने वाली, कोई इवेंट है क्या, ये पता कीजिए। देन आप देखिए कौन सी स्ट्रेटजी इस पे सुटेबल है, और फिर आप ये सब पैरामीटर देखकर आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। हमने एक डेटा एनालिसिस किया कि पिछले 5-6 सालों के अंदर क्रूड में मूवमेंट क्या रहा, तो हमने देखा एवरेजली अगर हम बात करें, सॉरी, -1 से +1 के बीच में करीबन 42% ऑफ टाइम क्रूड एक रेंज में रहता है। तो ऐसे टाइम पे आप कॉल और पुट हायर साइड के, मतलब ओटीएम कॉल पुट आप बेच के काम कर सकते हैं। 25% ऑफ टाइम मार्केट -2 से +2 के बीच में ट्रेड करता है, और 32% ऑफ टाइम मार्केट 2% के बियॉन्ड मूव करता है, मतलब 2% से ज्यादा की तेजी मंदी। तो आप देखिए आपके पास 32% चांस है जहां मार्केट में बड़ा मूवमेंट आने वाला है, और करीबन 42% चांस है सॉरी 42% चांस है जहां पे मार्केट एक रेंज में रहेगा। तो अगर मार्केट रेंज में है तब भी आप अपनी पोजीशनिंग बनाकर ट्रेड कर सकते हैं, और मार्केट अगर बड़ा वॉलेटाइल है तब भी बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ बेसिक स्ट्रेटजी जो हमारे बिगनर्स व्यूअर के लिए है, और फिर हम देखेंगे एडवांस स्ट्रेटजी जो प्रो ट्रेडर्स के लिए है। तो बिगनर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको तेजी लग रही है तो सिंपल आप कॉल ले लीजिए। लेट्स से आपको क्रूड, और दो स्ट्रेटजी फिर मैं आपको इसको पे ऑफ के साथ बताता हूं। अगर आपको तेजी लग रही है तो आप कॉल ले लीजिए। अगर आपको लगता है लिमिटेड तेजी है, वॉलेटिलिटी खत्म होने वाली है, तब आप क्या कीजिए, बुल कॉल स्प्रेड कर लीजिए। देखिए अगर आपको तेजी लग रही है, आपने क्या किया, एक कॉल ले लिया 5900 के स्ट्राइक प्राइस का 146 रुपीज। ये स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ये आपका करंट प्राइस भी हो सकता है, आपका टारगेट भी हो सकता है कि जितना आपको एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस कितना बढ़ रहा है। तो आपने क्या किया, आपको तेजी लग रहा है, आपने 5900 का कॉल आपने बाय कर लिया। भाव क्या चल रहा था, 5940 चल रहा था, और आपको लगता है क्रूड में तेजी आने वाली है, तो आपने क्या किया, इन द मनी का 5900 का कॉल ले लिया। 146 रुपीज में आपने कॉल ले लिया। आप फिक्स कर लीजिए मार्केट कितना भी नीचे आ जाए, मार्केट कितना भी नीचे आ जाए, आपका मैक्सिमम नुकसान जो हो सकता है वो हो सकता है करीबन 146 रुपीज का ही। इसके बियॉन्ड आपका नुकसान नहीं होएगा। क्लियर। तो आप यहाँ पे पे ऑफ देखिए, पे ऑफ के डायग्राम में क्या दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर आपका 146 रुपीज का ही नुकसान है, मार्केट कितना भी नीचे चल जाए। लेकिन जैसे ही मार्केट 6100 के ऊपर निकलता है, या समझो 6050 के ऊपर निकलता है, आपको प्रॉफिट बनना चालू हो जाएगा। और मार्केट में अगर बड़ी मोमेंटम आती है, पॉजिटिव आता है, तो कहीं ना कहीं उसका पूरा पूरा बेनिफिट आपको ही मिलेगा। क्लियर। जस्ट तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको तेजी लगता है कि मार्केट 6200 63 ऐसा आता है, तो मंथली बेस पे भी आप अपनी सिचुएशन पोजीशंस बना सकते हैं। एक कॉल ले लीजिए, और मार्केट में ऑटोमेटिक आपका स्टॉप लॉस फिक्स हो गया। कुछ भी कर लीजिए, आपका स्टॉप लॉस जो है वो फिक्स हो गया 146। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूँ, बहुत जन ये चीज नहीं जानते। बहुत बार हम लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं और स्टॉप लॉस लगा देते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि सर मैंने समझो 5700 में क्रूड का फ्यूचर ले लिया और 5650 का स्टॉप लॉस लगा दिया। सर होता क्या है, मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर मार्केट ऊपर चले जाता है। ऐसा होता है आपके साथ? प्लीज इंटरेक्टिव रखिए सेशन को, चैट विंडो पे डाल के बताइए। बिल्कुल सर, इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम जोन जो है वो मुझे लगता है 15 मिनट 1 आवर का मैक्सिमम है। विच सॉफ्टवेयर यू चेक दिस स्ट्रेटजी, ये इंटरनल हमारा एक्सेल्स पे हमने बना रखा है। बाकी अगर आपको कुछ पे ऑफ चाहिए तो हम टाइम टू टाइम आपको शेयर भी करते रहेंगे, रोज ऐसा ही होता है। तो सर आप, रूप सिंह जी, आप ऑप्शन में करना चालू कर लीजिए, आपके साथ ये चीज होना बंद हो जाएगा। कारण आप देखिए, आपने क्या किया,
146 रुपीज, 150 रुपए का एक तरह का आपका स्टॉप लॉस हो गया। आपने लगा लिया कि भाई मेरे को कुछ भी हो जाए 15,000 का रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। अब होगा क्या, सपोज मार्केट में मोमेंटम आया, 5900 से मार्केट क्रैश किया और क्रैश करके 5800 आ गया, 5750 आ गया, 57 आ गया। अब कितना भी नीचे जाओ आपका तो स्टॉप लॉस एक तरह से फिक्स हो गया। अब बहुत बार क्या होता है, मार्केट नीचे जाता है, आपको नुकसान दिखता है और फिर मार्केट ऊपर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका सौदा खड़ा रहेगा। फ्यूचर में होता क्या है, प्रेशर के चलते या स्टॉप लॉस के चलते हम एग्जिट करना पड़ जाता है। बट ऑप्शन में क्या हुआ, आपने 146 रुपए का रिस्क ले लिया है और मार्केट में कुछ भी हो जाए, भूचाल आ जाए, कुछ भी हो जाए, 146 रुपीज से ज्यादा का नुकसान आपको नहीं हो सकता। अब जैसे ही मार्केट ने सपोज करो नीचे आ भी जाता है, स्टॉप लॉस तक भी हो जाता है, उसके बाद भी अगर आप सपोज ऑप्शन में खड़े हो तो कहीं ना कहीं मार्केट में जब तेजी आता है एक्सपायरी से पहले, तो वापस आपका जो लॉस है वो प्रॉफिट में बदलता हुआ दिखेगा। तो ऐसे टाइम के लिए आपको ऑप्शन में ही ट्रेड करना चाहिए रादर देन गोइंग विद फ्यूचर। अगर आप बोलते सर ये 146 रुपीज तो बहुत ज्यादा है, मेरा कॉस्ट इतना नहीं, मेरे पास पैसे ही है 50, समझो 5,000 रुपए ही, तो आप क्या कीजिए, एक कॉल ले लीजिए और आपको लगता है मार्केट 6,000 तक जा सकता है, तो आप 6,000 का एक कॉल बेच दीजिए। हुआ क्या, जब आपने माल बेचा तो 100 रुपया मिल गया, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या लगा आपका 4600। अब होगा क्या कि प्राइजेस में कुछ भी हो जाए, अगर नीचे मार्केट क्रैश भी हो जाता है तो आपका मैक्सिमम नुकसान 4600 का ही होगा। लेकिन मार्केट अगर 6,000 का टारगेट अचीव कर जाता है आपका, तो आपको 5400 का भाव मिल जाएगा। मतलब मार्केट में कितनी बड़ी तेजी भी आ जाए ना, तब भी आपको 5400 ही मिलेगा, और कितनी बड़ी मंदी भी आ जाए तो 46। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो को थोड़ा सा रिपेयर करके 1:2 का स्ट्रेटेजी बिठा सकते हैं आराम से। बट आप ये देखिए, ये स्ट्रेटेजी में क्या हो गया, खाली आपका डिप्लॉयमेंट कितना हुआ 5,000 रुपया। 5,000 रुपए में आपने अपनी पोजीशन बना ली और मार्केट में 5,000 के प्रीमियम पे अगर 5400 मिलता है तो 100% का प्रॉफिट हो गया एक तरह से। 5400 रुपए अगर आपका व्यू तेजी का है और 6,000 का भाव आ जाता है, तो 6,000 के भाव पे आपको 5400 रुपए का बेनिफिट होता है, एक्सपायरी तक का टाइम मिलता है। तो आप देखिए आपका डिप्लॉयमेंट 100% बन जाता है। क्लियर है, एम आई क्लियर? कॉल लिया हमने और बुल कॉल स्प्रेड, इसको बुल कॉल स्प्रेड क्यों बोलते हैं, आपने क्या किया, एट द मनी का एक कॉल ले लिया, ओटीएम मतलब हायर साइड का जो स्ट्राइक है उसको बेच दिया, तो जब भी आप ऑप्शन राइट करते हैं तो आपको पैसा मिलता है। तो 100 रुपीज मिल गया और 146 रुपीज आपने पे किया, मतलब नेट इंपैक्ट जो पड़ा आपको वो कितना पड़ा, खाली 46 रुपीज। तो आपने क्रूड में खाली 46 रुपीज का पेमेंट करके, मतलब 4600 रुपीज का देकर आपने पोजीशन बना लिया। अब मार्केट कितना भी गिर जाए कोई तकलीफ नहीं, मार्केट कितना भी बढ़ जाए, आपका जो रेशियो आपने प्रीमियम फिक्स किया है उतना प्रॉफिट आपको मिलेगा अगर प्राइसेस में उतनी तेजी आ जाती है। इसी के विपरीत हमारे पास होता है, अगर आपको मंदी लग रही है तो आप पुट लेकर काम कर सकते हो, और अगर आपको जस्ट 5 मिनट रुक जाइए, मैं आपको एक एडवांस लेवल की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी स्ट्रेटेजी खूब है, लेकिन आई थिंक 10-15 मिनट के अंदर वी कैन वाइंड अप 12:30। इनकेस कुछ क्वेरीज है तो हम लोग ले लेंगे। तो अगर आपको मंदी लग रही है तो आप पुट लेके काम कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं कॉस्ट ज्यादा है तो बैर पुट स्प्रेड कर लीजिए। यहाँ पे भी हमने क्या किया, 5900 का एक पुट बाय कर लिया और पुट मुझे 106 में मिला। अब भाव चाहे कितना भी ऊपर चले जाए, मेरा मैक्सिमम रिस्क जो है वो 106 रुपए का है। अब आप बोलते हो सर ठीक है, आप बोलते हो टेक्निकली मार्केट करेक्शन तो है, ड्यू कर सकता है, बट अगर हम देखें तो सर नुकसान ज्यादा हो रहा है सर 10,000। तो हमने क्या किया, हमने पुट बैर पुट स्प्रेड कर लिया। बैर पुट स्प्रेड करने से हुआ क्या, 106 रुपए में हमने पुट ले लिया और मेरा टारगेट है कि प्राइस 5800 तक ही जाएगा। तो अगर इनकेस 5800 तक का प्राइस मिलता है तो मुझे 65 रुपए का प्रीमियम मिल जाएगा। दैट मीन्स मैंने 106 रुपया पे किया, 65 रुपया मेरे को फिर से मिल गया, मेरा नेट जेब से क्या गया 41 रुपीज। अब मार्केट चाहे कितना भी आ जाए, 6500 हो जाए, 6600 हो जाए, 6600 कुछ भी हो जाए, मेरे को मैक्सिमम नुकसान 4100 का ही होगा। क्लियर? और मेरे कहने के मुताबिक
प्राइसेस में बड़ा फॉल आ जाता है तो 5900 का मुझे प्रॉफिट मिलेगा। कहने का मतलब है मोटा मोटी 2000 रुपए का मैं प्रॉफिट ले सकता हूं ऐसे स्ट्रेटेजी बनाकर। क्लियर है? तो हमने पहले क्या देखा, कॉल बाय कर लो या पुट बाय कर लो। अगर प्रीमियम आपको ज्यादा लग रहा है, पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, तो आप बुल कॉल स्प्रेड या बेर पुट स्प्रेड आप कर सकते हैं। क्लियर? अब प्रोफेशनल्स के लिए जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रेटजी है पहला कॉल बैक स्प्रेड। कॉल बैक स्प्रेड मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं इन्वेंट्री वाले दिन, जब मुझे पता है शाम को डेटा आने वाला है और ये डेटा में मार्केट में बड़ा मोमेंट आने वाला है और इन्वेंट्री देखकर लेट से मुझे पता चल जाता है मार्केट में बड़ी तेजी आने वाली है या मार्केट में बड़ी मंदी आने वाली है, तो अकॉर्डिंगली मैं कॉल बैक स्प्रेड या पुट बैक स्प्रेड बना सकता हूं। इसमें करना क्या होता है, आपको अगर तेजी लग रही है आप नोट कर लीजिए प्लीज, और अगर कोई एक जन मुझे चैट विंडो पर डाल के बताता रहेगा तो मुझे लगेगा कि आपको ये मैसेज क्लियर हो गया है। सपोज क्रूड का भाव चल रहा है 5500। क्लियर? लेट्स से चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, प्रीमियम हमारे सामने। लेट्स से आपको लगता है कि क्रूड के अंदर जबरदस्त तेजी आने वाली, क्यों आने वाली है? क्योंकि ओपेक का डेटा आने वाला है और ओपेक अगले हफ्ते ये बोलेगा कि हम हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, हम हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे। तो आपको करना क्या है, एक सेकेंड, मैक्सिमम टाइम सर, ओके, इंटरडे ऑप्शन में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, आफ्टरनून इवनिंग इंडियन टाइम कभी भी आप करिए संतोष जी, इवनिंग में कीजिए, मॉर्निंग में कीजिए। वॉलिटिलिटी ज्यादा करके शाम को आती है, बट आप कभी भी कीजिए, मैं आपको और पॉइंटर्स बता दूंगा। बिकॉज ऑफ शॉर्ट इन टाइम में आपको ज्यादा पॉइंट्स नहीं बता पाया, बाद में हम कभी भी कनेक्ट कर भी सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी प्लीज नोट कर लीजिए। ओपेक की मीट होती है तब आपको ये स्ट्रेटेजी करनी है, इन्वेंट्री का डेटा आता है तब आपको ये स्ट्रेटेजी करनी है, या कोई भी ऐसा डेटा आता है जिसमें क्रूड पे बड़ा इंपैक्ट आता है, वो टाइम पे आपको ये स्ट्रेटेजी करना है। प्लीज ये स्ट्रेटेजी का नाम नोट कर लीजिए, कॉल बैक स्प्रेड और पुट बैक स्प्रेड। अगर आपको ऐसा लगता है कि ओपेक प्रोडक्शन घटाएगा या प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा और बड़ी तेजी आने वाली है, तब आपको क्या करना है, कॉल बैक स्प्रेड का यूज करना है। कॉल बैक स्प्रेड का यूज करने का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि सर मैं एक रेंज में ही बैठा हूं, लेकिन मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगा तो मुझे पैसा बनना चाहिए। तो हमने क्या किया, भाव चल रहा है 5940 का और मुझे लगता है कि ऐसा कोई डेटा आने वाला है, चाहे ओपेक की मीटिंग है, चाहे इकोनॉमिकल डेटा है, तब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग एक कॉल को बेचेंगे। तभी सवाल आता है सर आपने तो बताया था कि तेजी लगती है तो क्या करना है, कॉल को बाय करना है, और अभी आप बिकवा रहे हो मेरे को। आप सुनो सरी, ये आपका मल्टी लेग स्ट्रेटजी है। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको एक कॉल बेचना है 59 इन द मनी का एक कॉल बेचना है। तो आपने 5900 का एक कॉल बेचा 146 रुपीज में। जब आप कॉल को बेचते हो तो आपको प्रीमियम की प्राप्ति होती है, तो 146 रुपीज आपको मिल गया। ओके, क्लियर है? 146 रुपीज आपको मिला, क्यों मिला, क्योंकि आपने ऑप्शन को बेचा है, कॉल को बेचा है। सर अगर मैं कॉल बेचूंगा तो मैं तो बंदी कर रहा हूं, नहीं, मैं आगे का लेग बता रहा हूं। आगे का लेग क्या है, आगे का लेग ये है कि आपको दो ऑप्शन 6000 का, मतलब ओटीएम का, ओटीएम के दो कॉल बाय करने हैं। तो होगा क्या, एक कॉल जो आपने बाय कर रखा है वो ऑप्शन जो बेचा है उसके साथ ऑफसेट हो जाएगा, और जैसे ही भाव 6000 के ऊपर निकलेगा आपको प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा और अनलिमिटेड प्रॉफिट, एक तरह से आपका ऑप्शन बाय खड़ा हो गया है। देखिए यहां पे मैंने क्या किया, 146 में एक कॉल बेच दिया और मैंने दो कॉल ले लिया 100 का। तो यहाँ पे मेरा जो कॉस्ट है वो बहुत नेग्लिजिबल हो गया। क्यों हो गया, 200 रुपए में से 200 रुपया मैंने पे किया क्योंकि दो कॉल लिया, 146 रुपीज मेरे को मिल गया। मतलब ओनली 54 रुपीज के अंदर मैंने मेरी पोजीशन बना ली। कितने रुपए में, 54 रुपीज में। अब होगा क्या, मार्केट आइदर नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, क्यों, बड़ा इवेंट होने वाला है। सपोज अगर नीचे चले भी गया तो मेरा मैक्सिमम नुकसान क्या होगा,
5400 रुपया। 5400 से ज्यादा का नुकसान मेरा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि होगा क्या, जो मैंने कॉल बेचा है उसमें पैसा आना चालू हो जाएगा और जो कॉल मैंने बाय किए हैं वो मेरे निकल जाएंगे, लेकिन इन द मनी की होने की वजह से यहाँ पे मुझे वॉल ज्यादा मिल जाएगा। क्लियर? तो मैक्सिमम मेरा नुकसान 5400 का होगा। और इन केस मार्केट 6000 को छोड़कर तेजी में आ गया, मतलब मोमेंटम बड़ा आना चाहिए, अगर बड़ा मोमेंट आ गया और प्राइजेस जैसे कल तेजी आई 6000 के ऊपर निकल गया, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल 6200, 6300, 6400 कुछ भी हो सकता है, बिकॉज एक युद्ध छिड़ गया या जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया, तो होगा क्या, मैंने जो कॉल बाय किया है उसमें पैसा आना चालू हो जाएगा और वो मुझे बड़ा पैसा दे सकता है। तो अगर 6400 का भाव भी आ गया तो मुझे 24,000 रुपए मिल जाएगा और मेरा मैक्सिमम रिस्क क्या था, 5400। तो अगर मैं देखूं 4 टाइम्स बेनिफिशियल मेरे को मिल सकता है अगर ऐसा कुछ बड़ा ब्रेकआउट आता है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग इन्वेंट्री का जब डेटा लेते हैं तब इन्वेंट्री के डेटा के टाइम पे ज्यादा करें। बिल्कुल मंजू जी, मंजुनाथ जी, सर दिस इज एटीएम सेल 1 बाय, बिल्कुल आप एटीएम आईटीएम एज पर योर मार्जिन रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं। फ्रेंकली मेरे क्लाइंट है जिन्होंने बोला मुझे निफ्टी में बेच के ही काम करना है, और मैं बोलता हूं नहीं बेचो मत, मार्केट में तेजी लगी, बोला नहीं मेरे को बेच के ही काम करना है। तो हमने क्या किया था, 15,800 का 15,800 का पुट हमने बेच दिया था 250 रुपए में, और 15,500 का 2 पुट ले लिया था करीबन 125 रुपीज में। तो मेरा कॉस्ट जीरो हो गया, क्योंकि 250 मेरा सॉरी 125 250 125 125 250 मेरी पॉकेट से गया, और 15,800 का जो मैंने पुट बेचा था उसमें मेरे को 250 मिल गया, तो मेरा जेब में जीरो कॉस्ट लग गया। अब मार्केट अगर नीचे जाता तो अनलिमिटेड प्रॉफिट, और मार्केट ऊपर चले भी जाता तो मेरी जेब से कोई कॉस्ट नहीं जाता अदर देन ब्रोकरेज और टैक्सेस। तो ऐसा भी स्ट्रेटजी हम लोग ऑप्शन के द्वारा बना सकते हैं, बट आपको वैल्यू। तो यहाँ पे मेरा 5400 के नुकसान के अगेंस्ट अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो इन्वेंट्री के टाइम पे होता क्या है, इन्वेंट्री के टाइम पे बड़ा मूवमेंट आता है, 100-200 पॉइंट की तेजी आ गई या 100-200 पॉइंट की मंदी आ गई। अगर आपको लगता है कि मार्केट में तेजी बनने वाली है, आप कॉल बैक स्प्रेड कर लीजिए जिसके अंदर आपको एक एटीएम या आईटीएम बेचना है और 2 ओटीएम कॉल लेना है। और अगर आपका व्यू मंदी का है तो आपको करना क्या है, एक पुट बेचना है, ठीक है, 5900 का पुट बेच दिया, और 2 पुट मैंने ले लिया 5800 का। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, मेरा जो मैंने पुट बेचा उसमें 106 रुपए आया, और जो 2 पुट लिया है मैंने उसमें 65 गया। अगर 65 पकड़ू मैं तो 130 गया और 106 आया, तो ओवरऑल 2400 के अंदर मैंने मंदी करके बैठ गया। अगर इन्वेंट्री बढ़कर आ गई, गैसोलीन की इन्वेंट्री बढ़कर आ गई, ओपेक ने बोला हम तो प्रोडक्शन अभी का भी इतना बढ़ा देंगे कि मार्केट में 400-500 रुपए की गिरावट आएगी, तो होगा क्या, ओनली 2400 का स्टॉप लॉस। चलिए आप मेरे को ये बताइए, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो कितने रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप क्रूड में काम करते हैं? प्लीज चैट विंडो पे डाल के बताइए मेरे को। फ्यूचर पे अगर आप काम करते हो तो क्रूड जैसी कमोडिटी में कितने का स्टॉप लॉस लगाते हैं? देखिए हम लोग काफी जन है, प्लीज चैट विंडो पे डाल के बताइए मेरे को। चलो प्रसाद जी ने बताया 50 रुपए का स्टॉप लॉस। सर आपको पता है मार्केट में जो वॉलिटिलिटी क्रूड में बनी हुई है दैट इज अराउंड 80-90 रुपीज, 90 रुपए का एवरेज वॉलिटिलिटी आया हुआ है। अब होता है कि 50 रुपए के अंदर मार्केट में स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा और इमीडिएटली ऊपर आ जाएगा। क्या ऐसा होता है आपके साथ प्रसाद जी? ये वॉलिटिलिटी होगा तो कल परसों की बात कर लीजिए, मार्केट में परसों एकदम नीचे गिरावट थी, मार्केट सीधा खींच के ऊपर आ गया। आलोक जी 60 to 100 पॉइंट, आई कैन से 80 to 100 इज ए एवरेज, ओके 10,000 दैट कम्स अराउंड लेट्स से सेम हो गया, ठीक है 50 100 इज एडवाइजेबल बिकॉज 80 to 100 जो रेंज है वो, मैं बोलता हूं अगर आपको मंदी लग रही है 24 रुपीज का स्टॉप लॉस से अनलिमिटेड प्रॉफिट, डोंट यू थिंक दिस इज इंटरेस्टिंग? चैट विंडो पे डाल के बताइए मेरे को, डोंट यू थिंक 5400? ये तो मैंने चलो एक एग्जांपल दिया है, आप ऐसा स्ट्रेटेजी ढूंढ के निकाले 2400 रुपए के अंदर मैं आपको जीरो कॉस्ट भी बना के दे सकता हूं, बट वो ऑप्शन सामने देखना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, ये जो मैंने आपको अगर सपोज लगता है सर क्रूड तो 6000 आ गया, अगले हफ्ते ओपेक का मीट भी है, भाव में करेक्शन आएगा, तो इज इट इंटरेस्टिंग कि 2400 के नुकसान पे
अनलिमिटेड प्रॉफिट आप बना सकते हैं। और किया क्या मैंने एक आईटीएम या एटीएम, एटीएम क्या होता है, एट द मनी, जो करंट भाव है, और आईटीएम मतलब इन द मनी। तो मैंने क्या किया, इन द मनी का एक पुट बेच दिया, और ओटीएम मतलब दूर का 2 पुट ले लिया 5800 का। होगा क्या, अगर प्राइसेस में बड़ा करेक्शन आ गया, 5800 का लेवल तोड़ दिया, तो मुझे प्रॉफिट आना चालू। तो मैंने क्या किया, 106 रुपया मुझे मिला क्योंकि मैंने ऑप्शन बेचा, और 2 पुट मैंने बाय कर लिया 65 रुपए में। तो मेरा नेट आउटफ्लो कितना हुआ, 24 रुपीज का। क्या आपको लगता है 24 रुपीज इंपॉर्टेंट है? 24 रुपीज के अंदर आपका स्ट्रेटेजी बन गया। थैंक यू प्रसाद जी। सर आई वांट टू लर्न मोर ऑन दिस, वी कैन हैव सम लाइव एग्जांपल। बिल्कुल, आप गुडविल टीम को आप कनेक्ट कर लीजिए, इफ पॉसिबल डेफिनेटली मैं लाइव भी लेकर आपको बता सकता हूं, एंड वी कैन हैव ए सैंपल। मैं गुडविल से रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ यू कैन मेक अ चैनल, मैं आपको हेल्प कर दूंगा आगे, कि हम टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, जहां पे मैं आपके लिए जो ऑप्शन के लाइव कॉल्स बनते हैं, ये मैं आपको आराम से दे सकता हूं व्यू के साथ। बट जो भी व्यू है वो आप अच्छे से ले सकते हैं, क्योंकि एज ए दिस प्रेजेंटेशन एज पर सेबी आई एम नॉट सपोज टू डिलीवर व्यू राइट नाउ। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, बट डेफिनेटली डोंट यू फील कि 24 रुपए के अंदर अनलिमिटेड प्रॉफिट। लेट से कुछ बड़ा क्रैश आ गया कि प्राइसेस में 400-500 पॉइंट टूट गया, तो आपको 12,000-17,000 रुपए तक का भी प्रॉफिट मिला, लेकिन लॉस कितना, अगर रिवर्स गया तो 2400। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑप्शन के अंदर आप ऑप्टिमाइज करके ट्रेड कर सकते हैं। प्लीज चैट विंडो पे डाल के बताइए, इज दिस स्ट्रेटजी इज वेरी गुड, आपको कैसा लगा? आउट ऑफ 10 ये स्ट्रेटजी, कॉल बैक स्प्रेड और कॉल पुट स्प्रेड, प्लीज चैट विंडो पे डाल के बताइए मेरे को, आउट ऑफ 10 आपको कितना अच्छा लगा? 10 मींस वेरी गुड और 1 मींस ठीक है, चलता है। देखिए वी आर 90 प्लस राइट नाउ। चैट विंडो पे एटलीस्ट 10 जन का मेरे को रिप्लाई आना चाहिए, तो मैं आपको एक और लिमिटेड प्रॉफिट की एक स्ट्रेटजी बताऊंगा। और फ्रैंकली मैं ये स्ट्रेटजी वीकली एक्सपायरी के हिसाब से या वीकली इन्वेंट्री या इवेंट के हिसाब से मैं बिल्कुल इसी स्ट्रेटजी को यूज करता हूं। थैंक यू मिस्टर प्रसाद, थैंक यू मिस्टर विकास, ब्यूटीफुल, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो ऑलमोस्ट मैं समझ सकता हूं, एवरेज अगर अपन पकड़े 7.5 दैट इज गुड, ठीक है। तो प्लीज आप ये स्ट्रेटजी समझिए, नहीं समझ में आया मेरे को बताइए, मैं और 2 मिनट लेकर आपको बता सकता हूं। कम से कम कॉस्ट के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा ये स्ट्रेटजी के अंदर आपको। सेल्वी मोर, ओके 10 वंस मोर, ओके ठीक है। आकाश जी का सवाल है, वंस मोर नेक्स्ट वीक फ्राइडे क्रूड की एक्सपायरी, बिल्कुल क्रूड के एक्सपायरी के टाइम पे भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। देखिए आकाश जी, हमको करना क्या है, आपका व्यू है तेजी, सपोज मंदी का, मैं एग्जांपल है खाली, कि क्रूड का भाव 6000 चल रहा है, और आपको लगता है कि ओपेक की मीट है, इन्वेंट्री का डेटा है, क्रूड की एक्सपायरी है, और भी कुछ इवेंट्स है, जिसकी वजह से प्राइसेस के अंदर बड़ा मूवमेंट आने वाला है। अच्छा, मूवमेंट पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मैंने पहले वाले स्लाइड्स में बताया था, चॉपी इंडिकेटर। तो आपको ये भी पता चल गया कि अरे मूवमेंट आने वाला है, तो करना क्या है, मूवमेंट में अंदर मंदी, मंदी आपका व्यू है, अगर आपका व्यू है तो हमने क्या किया, एक एटीएम का या आईटीएम का कॉल बेच दिया, एक एटीएम का या आईटीएम का कॉल बेच दिया, सॉरी पुट बेच दिया। जैसे ही आप पुट बेचोगे तुरंत आपको 106 रुपया मिल जाएगा, क्लियर है? अब हमने क्या किया, 5800 के 2 पुट ले लिए। 2 पुट लेने का ऑब्जेक्टिव ये है, इनकेस 5800 के नीचे गया तो मैं मंदी कर लूंगा, और नहीं गया तो मैंने जो पुट बेचा है उसके अगेंस्ट मैंने एक पुट ले भी लिया, तो मुझे मैक्सिमम लॉस जो होगा वो मेरे प्रीमियम पेड का ही होगा, विच इज 2400 इन दिस केस। तो अब मार्केट यहां से 6100 हो जाए, 6200 हो जाए, 6500 हो जाए, 7000 हो जाए, 10,000 हो जाए, तब भी मैक्सिमम मुझे नुकसान 2400 रुपए का ही होगा, 2400 का ही होगा। और इनकेस मेरे कहने के मुकाबले प्राइसेस में बड़ी गिरावट आ गई, जैसे मैंने समझा, तो क्या होगा, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाएगा, क्लियर?
तो ऐसे ही अगर तेजी करना है तो हम क्या करेंगे, एक कॉल बेचेंगे आईटीएम इन द मनी का, 5,900 का भाव चल रहा है तो 5,900 का कॉल बेचेंगे और 6,000 के 2 कॉल ले लेंगे। अगर मार्केट में बड़ा मोमेंटम आया, ब्रेकआउट आया, बहुत बार मैं आपको बताता हूं कोई भी कमोडिटी या स्टॉक 52 वीक्स हाई या मंथली हाई अगर ये ब्रीच करता है तो बैक टू बैक मार्केट में तेजी आ जाती है। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, कॉल बैक स्प्रेड या कॉल पुट स्प्रेड, और ये इक्विटी में आपको जल्द अच्छा काम आने वाला है। जब मार्केट में गिरावट आती है तो जबरदस्त गिरावट आती है, तो ऐसे टाइम पे आप कॉल बैक स्प्रेड या पुट बैक स्प्रेड का यूज ले सकते हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल जो है वो है लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई या लॉन्ग पुट बटरफ्लाई। ये भी 3 लाख स्ट्रेटेजी है। इसके अंदर हमने क्या किया है, लिमिटेड, मतलब बहुत जन को ये रहता है कि सर मुझे टारगेट पता है क्या आने वाला है, और ये भी ब्यूटी क्या है, मिनिमम कॉस्ट के अंदर देखो सबसे ज्यादा डर जो लगता है वो किसका लगता है सबको, लॉस का। तो मिनिमम लॉस के अंदर आप ये स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकते हैं। हमने क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सर मुझे को व्यू मिला, किसी से भी मिला हो, चलो न्यूज चैनल से मिल गया, किसी से भी मिल गया, सर मुझे लगता है क्रूड में तेजी आएगी। ठीक है सर, कितनी आएगी तेजी, सर मुझे लगता है क्रूड में अभी भाव चल रहा है 59.40 का, और मुझे लगता है कि 100 रुपए से 100 रुपए की तेजी आएगी, या लेट से मार्केट 50-100 रुपया बढ़ेगा, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, ना ऊपर जाने वाला नीचे जाने वाला। जब आपको ये कॉन्फिडेंस है तो हमने किया क्या, पहले आप समझिए। पहले मैंने क्या किया, दो कॉल बेच दिया। क्या किया मैंने, दो कॉल, भाव क्या चल रहा है 59 का, तो मैंने इन द मनी के 2 कॉल बेच दिए 146 रुपीज इंटू 2, तो 146 इंटू 2 मैंने बेचा, तो मेरे को 291 रुपीज मिल गया। कितना मिल गया, 291 रुपीज मिल 292 रुपीज मिल गया। क्लियर है। इन मैनी केसेस इन्वेंट्री नेगेटिव रहता है, भाव बढ़ जाता है। सर इन्वेंट्री का एक्सप्लेनेशन गलत है प्रसाद जी, आप समझिए, जो दिखता है वैसा होता नहीं है। क्या आप इन्वेंट्री में गैसोलीन को देखते हो, प्लीज चैट विंडो पे डाल के इमीडिएटली बताइए, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। क्या आप इन्वेंट्री के डेटा के अंदर गैसोलीन देखते हो, यस, यही तो प्रॉब्लम है सर। आप लोग को जो दिखता है वही देखते हो, आप जो चीज नहीं दिखता है उसको देखो ना सर। गैसोलीन का स्टॉक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूएस में जो कंजम्पशन होता है वो गैसोलीन का ज्यादा होता है, तो गैसोलीन की इन्वेंट्री भी मायने रखती है। इसके लिए ये सेशन लिया गया है गुडविल, यही सेशन है आपको समझाने के लिए कि आपको पता रहे कि गैसोलीन के प्राइसेस के अंदर क्या इंपैक्ट आएगा। क्लियर। तो गैसोलीन को, इन्वेंट्री को आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि क्रूड का मोमेंटम क्या रहता है, क्योंकि बहुत बार इन्वेंट्री में माइनस है बट गैसोलीन बढ़ जाती है, तो गैसोलीन बढ़ने की वजह से क्रूड में गिरावट आती है। क्विकली चलो हम लोग देखते हैं इसमें। तो मुझे लगता है मार्केट में तेजी आएगी बट लिमिटेड तेजी पे ही जाके रुक जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो कॉल बेचेंगे, हमको 292 रुपीज मिल जाएगा। अब मुझे लगता है प्राइजेस 6,000 के बियॉन्ड, 6,000 के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, तो मैंने 6,000 का एक कॉल ले लिया, और उसको सेफ गार्ड करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक पुट भी ले लिया, सॉरी मैंने एक कॉल भी ले लिया 5800 का। तो इसका मैं आपको इन डिटेल बाद में अच्छे से और समझा पाऊंगा, आई एम रियली शॉर्ट ऑफ टाइम। तो इस स्ट्रक्चर में अगर आप बनाएंगे तो आप यहाँ पे पे ऑफ देख लीजिए, और ये पे ऑफ डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर प्राइस आपका टारगेट 5900 का है, वो अचीव कर लेता है, तो मैक्सिमम, बहुत बार होता है ना मार्केट एक रेंज में आ जाता है, एक जंप लेने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करने लग जाता है, तो ऐसे टाइम पे मैक्सिमम प्रॉफिट आप निकाल सकते हो अगर आपका व्यू पिन पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि डेफिनेटली मुझे ये 5900 का भाव आ जाएगा, तो ऐसे टाइम पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट, और अगर आपके अगेंस्ट गया तो खाली आपको 1300 पॉइंट का नुकसान आएगा। सिमिलरली अगर आपको लगता है मार्केट में मंदी आने वाली है और आपको पिन पॉइंट पता है कि मार्केट 5900 पे ही जाएगा, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, तो आप स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, दो इन द मनी का पुट आप बेच दीजिए, और साथ में 5800 का एक पुट ले लीजिए, और 6,000 का एक पुट ले लीजिए। होगा क्या, यू विल बी टोटली हेज। अगर मार्केट बियॉन्ड आपके इस रेंज के बाहर जाता है
मतलब आपने एक्सपायरी क्या एक्सपेक्ट की है, 5950 से 5850 के बीच में मार्केट मूव करेगा या 5900 पे आएगा। अगर आपके एक्सपेक्टेशन बराबर मैच होता है तो यू विल गेट अ गुड प्रॉफिट। अगर मैच नहीं करता है तो मिनिमम लॉस जो रहेगा वो 1200 का रुपया। ये एक्सपायरी के दिन के लिए आप स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं, जहां पे इफ यू फील कि यस मार्केट इज गोइंग टू कम डाउन एट 5900 या लेट्स से 5950 से 5850 के बीच में क्लोजिंग देगा, तो ऐसे टाइम पे ये स्ट्रेटेजी आप बना के बेनिफिट ले सकते हैं। तो दिस इज एक्सपायरी बेस्ड स्ट्रेटेजी। एंड मैं पसंद जो करता हूं वो कॉल बैक स्प्रेड, पुट बैक स्प्रेड करता हूं। और अगर आप बिगनर है तो बेटर आप कॉल बुल कॉल स्प्रेड या बेयर कॉल स्प्रेड यूज कर सकते हैं। क्लियर? इनकेस अगर कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे चैट विंडो पे डाल सकते हैं। वी आर क्लोजिंग दिस सेशन, बट मैं दो चार चीज और लेके आया था, बट इट्स एक्चुअली शॉर्ट ऑफ टाइम। एनर्जी इंडेक्स जो ऑलरेडी आप जानते हैं एमसीएक्स पे आ चुका है, इंडेक्स है और कम मार्जिन पे अच्छे ट्रेड्स बन सकते हैं इसके अंदर। उसके अंदर आपका क्रूड और नेचुरल गैस दोनों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली जो अभी का भाव 5300 के आसपास, 1600 के आसपास समझो पहुंच गया है और कॉस्ट वाइज भी काफी टैक्स इफेक्टिव है। चाहे हम क्रूड में काम करें चाहे एनर्जी डेक्स में करें, तो यहाँ पे एक मीन रिवर्सल का स्ट्रेटजी हम लोग यूज कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ मूव कर रहा है। और ये ऑप्शन के थ्रू भी हम लोग मीन रिवीजन का स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। देन वीकली स्ट्रेटजी के अंदर जो मैंने आपको इन्वेंट्री का डेटा बताया था कि देखिए जब जब इन्वेंट्री आती है मार्केट में मोमेंटम आता ही आता है, और जब जब ओपेक की मीट आती है तब भी प्राइसेस के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज आपको बन जाती है। तो ज्यादा करके हमने देखा एनर्जी इंडेक्स हो चाहे क्रूड ऑयल हो, इन्वेंट्री डे के दिन हमको मोमेंटम मिलता है। यहाँ पे आप देखिए एनर्जी इंडेक्स में ड्यूअल बेनिफिट मिलता है, क्योंकि बुधवार को क्रूड की इन्वेंट्री आती है और थर्सडे को नेचुरल गैस की इन्वेंट्री आती है। तो ज्यादा करके अगर आप दोनों को मैच कर लोगे तो बड़ा मोमेंटम आप कैप्चर करके चल सकते हो। देखिए नेचुरल गैस की इन्वेंट्री के टाइम पे भी एनर्जी इंडेक्स के अंदर मोमेंटम बनता है, और ओपेक की मीट आती है तब भी बड़ा मोमेंटम बनता है। क्रूड की इन्वेंट्री के दिन हम लोग ज्यादा करके ऑन एन एवरेज 2 से 2.5% की तेजी या मंदी देखते हैं। तो एवरेज 2% प्लस की तेजी मंदी इन्वेंट्री के दिन होती है। ऐसे ही नेचुरल गैस के अंदर भी हम लोग ऑलमोस्ट 2 से 2.5% की तेजी मंदी मिलती है। हमने जब एनालाइज किया तो हमें पता चला कि एवरेजली 38% ऑफ टाइम मार्केट 1% के अंदर ही मूव करता है, बट 31% ऑफ टाइम 2% से ज्यादा की तेजी मंदी हम लोग क्रूड में देखते हैं, और 36% ऑफ टाइम नेचुरल गैस में भी 2% से ज्यादा की तेजी मंदी बनती है। क्रूड में जब भी ऐसा अपॉर्चुनिटी बनती है तो आप स्ट्रैंगल स्ट्रेडल भी काम, लॉन्ग स्ट्रेडल या स्ट्रेडल भी करके काम कर सकते हैं, वॉलिटिलिटी के लिए काम आता है। तो विद दिस आई एंड माय सेशन। आई होप जो पॉइंटर्स मैं बताना चाहता था, मैं एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता था कि आपको ये पता रहे कि मार्केट के अंदर एनवायरनमेंट क्या है, उसी एनवायरनमेंट के चलते हम ऑप्शन में, हम फ्यूचर्स में काम कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने क्या देखा कि क्रूड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्रूड का फ्यूचर क्यों इंपॉर्टेंट है, और क्या फैक्टर्स है जो क्रूड को इंपैक्ट करता है, और क्या टेक्निकल इंडिकेटर है जो ये वॉलिटिलिटी हमें बता सकता है। विद दिस आई एंड माय सेशन। इन केस कुछ क्वेरीज है तो सेशन इज ओपन। ओवर टू सर्वानंद sir, and in case if you want to connect you can connect with goodwill team any point of time, and वो लोग मुझसे भी आपको कनेक्ट करवा देंगे इन केस अगर आपको कुछ भी क्वेरी चाहिए। आई एम रेडीली अवेलेबल फॉर यू इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी कमोडिटी मार्केट में रिलेटेड है। एंड प्लीज डू सेंड योर फीडबैक ऑन टुडेज सेशन। जैसा भी लगे, आउट ऑफ 10 आपको 4 लगता है, 5 लगता है, 2 लगता है, प्लीज लेट मी नो सो दैट मैं अपने आप को और इंप्रूव कर पाऊं। विद दिस आई एंड माय सेशन। थैंक यू सो मच। Sarwan sir, over to you. Thank you, sir. Thanks for a wonderful session, sir. Thank you so much, sir. Yeah, sir. I think we can wait for next couple of minutes to get the. Sure. I have taken slightly more time today. We were supposed to complete by 12:15, 12:30, but objective was कि
जो मैसेज है वो क्लियर पता होना चाहिए कि ऑप्शन में क्या ट्रेड करना है। एंड फ्रेंकली फ्रेंड, जो मैंने 1/2 हम लोग जनरली बोलते हैं कॉल बैक स्प्रेड या पुट बैक स्प्रेड, ये स्ट्रेटजी को आप इन्वेंट्री वाले दिन या एक्सपायरी वाले दिन यूज कीजिए, बहुत अच्छे रिटर्न्स इसमें बन सकते हैं क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छे हैं इसमें। I think this time we had a more interactive sessions there. I think it's very useful also. Okay, okay. Really helpful also, a lot. If you will, we can create जो भी डे टू डे अपडेट्स आते हैं एनर्जी मार्केट पे ऑप्शन के, तो आई विल रिक्वेस्ट अयूब कि इफ वी कैन कनेक्ट इन दिस वे के जो भी अपॉर्चुनिटी आते हैं, आई एम रियली रेडीली अवेलेबल के जो भी डेटा या कुछ अपॉर्चुनिटी आई कैन शेयर विद द टीम एंड ऑल सो दैट दे कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ दिस। प्रसाद जी का सवाल है, टेल मी द इंडिकेटर अवेलेबल ऑन जीरोधा। सर यू कैन यूज चॉप इंडिकेटर, अदरवाइज एडीएक्स। ADX is also an indicator which will help you out to find volatility. देखिए ऑप्शन में अगर आपको काम करना है तो प्लीज आप समझिए, बिना वॉलेटिलिटी समझे अगर आप ट्रेड करते हैं तो बहुत रिस्की हो जाएगा, तो प्लीज वॉलेटिलिटी आप समझिए। Your feedback will be most important for us. आज आप काफी पेशेंसली 1.5 आवर तक आप जुड़े रहे, तो फीडबैक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सो दैट वी कैन definitely Goodwill team will help you out with the Telegram channel or any other thing you required. Yes, we have a separate Telegram group also as well with us. So for which I just request you guys to kindly speak with your branch manager for the same. And of course, there will be definitely follow-up sessions in future also. Very soon, we will just come up with the the respective schedule for that. Surely राजवीर जी, हम लोग नेकेड ऑप्शन के लिए भी we can work it out, but today as a limited to time, मैं next time make sure करता हूँ। In case अगर आपको कभी भी ऐसा है तो you can connect with the Goodwill team, they will definitely help you out in I think we don't have any more queries, so if we can end this session. I think we can end it, sir. Actually, thanks a lot for your valuable timing. Or thanks a lot, guys. Especially we have Ayub also from MCX. If you want to add something. Pardon, sir? I think we have Ayub also from MCX. If you want to add something. Okay, we can end this session. Sure, sir. Thanks a lot for valuable timing, sir. Actually, thanks a lot. Thank you so much. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir.